य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता। Faculty of the day and renowned tax expert of the country, Dr. Girish Ahuja Sahab, President of CA Association Yamal Bhai Vyas, President of AGFTC and past RCM Durgesh Bhai Buch, Secretary of the branch Nero Bhai Choksi, Secretary of the AGFTC Jainik Bhai Vakil, Managing Committee members, Regional Council members, past RCMs and past chairmen of the branch, all the dignitaries of the dais, seniors in the profession and my dear friends. A very warm welcome and good evening to all of you. Friends, this is the second program on this technical analysis of the Finance Bill 2016, and I know that you all are eager to hear Dr. Ahuja Sahab. This time the unique feature of this program is both the important limbs, that is the direct tax and indirect tax, would be covered at length by the experts. Now, without taking much of the time, I request CA Yamal Bhai Vyas to please welcome Girish Bhai Ahuja Sahab. Now, on behalf of AGFTC, I request Durgesh Bhai Buch and Jainik Bhai Vakil to please welcome with a memento. Sir, please take the charge now. Thank you. Chairman of the Ahmedabad branch of ICAI, Mr. Vikas Jain, President of the CA Association Ahmedabad, Yamal ji, Durgesh Buch ji, President of the AGFTC, Jainik Vakil ji, Secretary of the AGFTC, and of course, Secretary of the Ahmedabad branch and CA Association also, Mr. Nirav Choksi ji, the other dignitaries sitting in front of me. I can count many, but I may not miss anybody's name, so that's why I'm not naming them. Ladies and gentlemen. Well, friend, let me tell you, this particular government is now not working only on the basis of bureaucrats. Two committees were formed. One, of course, was formed earlier. We know that was AP Shah committee, where I was also a member. The another committee was also formed, where I could not be a member because I already was a member, and that was Simplification Committee or Tax Reform Committee, under the chairmanship of Justice Ishwar. And we had given only MAT provisions, issues relating to MAT, to the foreign institutional investors and foreign companies that time, which has been accepted. And the loss to the revenue to that amount was 43,000 crore. But they gladly accepted it to see that nothing wrong should be done for anyone. And I'm glad to inform you that out of the recommendations which were given by Tax Reform Committee, more than 50% recommendations have been accepted by it.
The meaning thereby, they are not basing the judgment only on bureaucrats. Now they are getting the expert advice also. The committee was formed. One gentleman from here also was the member of that committee. आपको पता ही है. So that's why Mukesh Patel ji was the member of this committee, and the other 9 members were from other places. But I'm glad that they have accepted that thing also. Many changes, more than 160 changes are there this time in the Income Tax Act. More than 160 changes. It's a complete overhaul. And many things, many good things are there. Maybe some 2-3 irritate points are there, but everybody was expecting that exemption limit will be increased. And I also had a long discussion with the minister, but his view were different. He said that the moment we increase the limit, the number of the assessees will go out. Only 4 crore per assessees are paying income tax, and if we increase the limit, they'll go out. But they have done it in a different manner. Although there is no exemption limit increased, but for those persons whose total income does not exceed individual 5 lakh, the benefit have been given to them indirectly, maybe not be a direct benefit, and that is in the form of 87A. Because earlier, although 2,50,000 is exempt, but you could take a rebate of 100% of the tax or rupees 2,000 under 87A, meaning thereby those who are getting less than 5 lakh, the exemption limit for them was 2,70,000. Because of the 20,000, the 2,000 tax there. Now exemption limit for them has been increased to 3 lakh because the 2,000 has been raised to 5,000. So meaning thereby, those who are in whose total income is less than 5 lakh, total income. Maybe they have saved under ATC 1,50,000, so maybe it is 6,50,000 or maybe around that. Their exemption limit indirectly has gone up from 2,50,000 to 3 lakh, but they remain in the bracket of the assessee. That was the way of doing it, but directly benefit has not been given to anybody else. Coming to this. So let us go clause by clause discussion on this budget. If you look up, there were few changes in section 2 relating to definitions. One change is relating to meaning of capital asset. Because of the deposit certificates which were issued under gold denomination scheme, gold 2015, those deposit certificate was issued. The question came up whether it is a capital asset or not. If it is a capital asset, when you transfer, there will be a capital gain. But now they have given the deposit certificate will not be treated as a capital asset. And since it is not a capital asset, if you transfer those deposit certificate, there is absolutely no capital gain. That's why they have put the definition on the section 2, clause 14, subclause VI, where they have said, okay, now like gold deposit bond, this deposit certificates will also not be treated as a capital asset. Next change is a very interesting change, one line change, but काफी interesting है. आजकल आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते ही नहीं हैं. अब वो बुलाते रहते हैं, आप एक ही वक्त जाते हैं जब स्क्रूटनी होती है. Otherwise everything is being done at home. But even in the case of scrutiny also, you have to go for hearing. You go for hearing or for other purpose of hearing. So वो भी जाना बंद हो जाएगा. वो बेचारे क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ आया. Because they have inserted a definition of hearing in section 2, clause 23C. And it says, hearing includes any communication of data or documents through electronic mode. तो बाप की खत्म, जाने की जरूरत नहीं है, घर से भेज दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. It will be treated as hearing. So whatever information they want, you can give it by electronic mode. But वो आपको पता है जाना तो पड़ेगा ही. मैंने कुछ कहा नहीं है. Coming to the next point. Small change in section 2, clause 24, not very much relevant, so I'm not taking much time. Now, section 10, clause 12.
a proviso added, section 10 clause 12A, a new section added, new clause added, section 10(13), again a proviso added, जिसका बहुत शोर मच रहा है। रास्ते में दुर्गेश जी भी बोल रहे थे कि उसमें क्या है, और जैनिक जी भी कह रहे थे, दोनों का डिफरेंस व्यू था। एक कह रहा था अच्छा हुआ, एक कह रहा था गलत हुआ है। Am I right or something? And that is relating to EPF, Employee Provident Fund. Abhi tak the position regarding Employee Provident Fund is, it is a scheme of EEE, exempt, exempt, exempt. Pay, take deduction under ATC, interest exempt, final withdraw exempt under section 10(12), exempt. But as regards National Pension Scheme Trust, which was brought in 2004 because of the government employee and later on for everyone also now applicable, National Pension Scheme Trust, it is a case of EET, exempt, exempt tax. You pay, you get a deduction under ATCCD, interest not taxable, or whatever bonus not taxable. But final withdrawal, either lump sum or in annuity, both are taxable. That is under ATCCD. There is one approved superannuation fund. In the case of approved superannuation fund also, most of the cases is a case of EEE, but some cases it is EET. Now, what the government has thought, good or bad, I'm not commenting on that. Let us have, these are all three retirement schemes, whether it is EPF or it is superannuation or it is pension scheme. Why can't we have a level playing field? Why can't they be on the same line, on the same footing? इस विचार से सोचा है, अच्छा है कि गलत है, वो बाद में पता लगेगा, क्योंकि बहुत ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया है। तीनों सेम लाइन पर होनी चाहिए। क्या लाइन है? सीसीडी में तो टैक्सेबल है, ईटीई उस पे प्रोविडेंट फंड में माफ है। तो इन्होंने क्या किया है? ए प्रोवाइजो हैज बीन एडेड टू सेक्शन 10 clause 12, provided that the accumulated balance of the recognized provident fund, which is attributable to the contribution of the employee on or after 1/4/16, contribution of the employee on or after 1% shall be exempt to the maximum extent of 40%. 40 exempt करेंगे, बैलेंस को टैक्स कर देंगे. That is, up to 31st March 2016, whatever is your balance untouched, it remains EEE. But whatever employee contributes on or after 1st April 2016, and that will be accumulated. Whenever you withdraw that, at that particular time, 40% will be exempt and balance 60% you will be liable to pay tax. वो एक explanation दी, वो बाद में बताता हूँ. CCD में उल्टा था, National Pension Scheme, you get installment, you get lump sum, वो taxable था. अब एक section 10 clause 12A एक clause insert कर दिया है, नया clause है, और उस clause में लिखा है, when this National Pension Savings Scheme is discontinued, or you opt out of this scheme, you opt out, or this is discontinued because after a period of time you may discontinue, you are not an employee maybe at times. If it is discontinued, you opt out of life, and you take a lump sum, then 40% of the lump sum means you can get the annuity computed to the extent of 40% and it will not be taxable. अगर बाकी 60% आप annuity लेते रहिए, वो taxable होगा. So 40% there exempt, 40% here exempt. Where National Pension Scheme Trust got benefit, they lost 60%. Superannuation में 10(13)A में भी यही डाल दिया, up to 40% exempt, balance 60% taxable. अब एक अदिया साहब की स्टेटमेंट आई थी जो व्हाट्सएप में घूम रही है और उसका मिस रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हुआ है. अदिया साहब ने कहा कि
हमने 60% को टैक्स नहीं किया है, लेकिन अगर एक काम कर सकते हैं कि ये 60% आप लमसम मत लो। किसको? ईपीएफ को। डोंट टेक इट लमसम, गेट इट कन्वर्टेड इनटू एनओटी, उसकी एनओटी बनवा दो। तो आपका वो जब ट्रांसफर करेंगे टू दी एनओटी, देयर विल बी, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। ट्रांसफर टू एनओटी विल नॉट बी टैक्सेबल। बट ये नहीं कहा कि जब एनओटी से पैसा आएगा रेगुलरली, दैट विल बी टैक्सेबल लाइक एटीसीसीडी। वो तो टैक्सेबल होगा एनओटी, बट lump sum transferred, because in EPF you will get lump sum 60%. That lump sum you get it transferred and take pension throughout, and when you take the pension it is exempt. उन्होंने ये कहा है। पॉइंट ये आ रहा है कि कुछ ने स्टेटमेंट दे दी, सर इट शुड बी रिलेटेड टू ओनली इंटरेस्ट पार्ट, बिकॉज contribution is mine, I am investing and I am getting back my money. Although you are giving me a deduction, absolutely no problem, but I am locking my money also. So only interest should be 60% taxable. अदिया साहब ने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा, उन्होंने कहा I will put it up before the minister and let him consider that point. और स्टेटमेंट भी आ गई जेटली जी की, yes we may see, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये 60% कौन सा होगा, but they are considering the fact that people have started, ये तो कुछ और है, मैं एक और चीज भी बताऊंगा, लेकिन रुकिए। और क्लैरिटी भी है और वैसे भी जरूरत नहीं थी। When you receive payment from public provident fund or when you receive payment for statutory provident fund of 1925, the exemption is under section 1011 and not under section 1012. It's not under 1012, meaning thereby 1011 has not been tinkered. It has not been touched. Therefore, whenever you get the payment from PPF, it remains EEE. It's only recognized provident fund where there is going to be a problem. तो वो क्लैरिटी उन्होंने दी, क्लैरिटी देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सेक्शन देखा जाता तो 1011 हैज नॉट बीन टच्ड, इट इज ओनली सेक्शन 1012 व्हिच हैज बीन टच्ड। तो ये कंसेप्ट है सर, क्लियर हो गया। तो मैं आगे बढ़ूं जरा एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, जहां कहां प्रॉब्लम आई है। मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो कल से शोर मच रहा है। सीएफओ का टेलीफोन आया, क्या हुआ? सर माय सैलरी इज 1.5 करोड़। ओके, वेरी गुड, तो मुझे पता है 1.5 करोड़ है, लेकिन व्हाट द कंपनीज आर डूइंग, अगर आपको ख्याल हो, employers contribution to recognized provident fund is exempt up to 12% of the salary of the employee, up to 12% of the salary of the employee, and balance, if any, employer contributes, it is taxable in the hands of the employee. It is included in the meaning of salary. 12%, 1 crore 50 lakh का 18 लाख हुआ, 18 lakh if I'm not wrong. और वो 18 lakh employer contribute करता है, and he does not pay any tax, and he will pay this money, he will get back this money when he retires. Am I right? And there will be no difficulty. 1.18 lakh. अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है जो लोगों ने देखा ही नहीं है? We have Schedule 4 in the Income Tax Act relating to the rules regarding Provident Fund, recognized Provident Fund, rules regarding Superannuation Fund, and rules regarding Charitable Trust. Gratuity Trust. Schedule 4 of the Income Tax Act. उसका एक Rule 6 है. उस Rule 6 में यही लिखा था, employer contribution up to 12% of the salary. अब उन्होंने वहां क्या लिख दिया? Employers contribution up to 12% of the salary or rupees 1,50,000, whichever is less. मर गया बेचारा। 18 लाख माफ था, अब कितना माफ होगा? 1.5 लाख। बाकी 16.5 लाख पर उसका तो बेड़ा गर्क हो ही गया, क्योंकि 30% अब टैक्स लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 क्यों लगेगा? 35 लगेगा। बेचारे की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वैसे ही सरचार्ज 15% हो गया है। कहता जी क्या करूं? बात तो ठीक है, लेकिन ये तो प्लानिंग हो रही थी ना एम्प्लॉयर द्वारा कि यू कंट्रीब्यूट 12%, वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम सेइंग। सो ये क्वेश्चन आ गया है 12% और 1,50,000 विच एवर इज। सो फर्क पड़ेगा
हाई पेड एम्प्लॉय को बहुत फर्क पड़ने वाला है। मतलब जो 12.5 लाख रुपए की सैलरी से ऊपर ले रहा है सब फंस गए। 12.5 का 12% 1.5 लाख होता है per year. So if you are taking salary more than 1250, you will be affected. If you are taking salary up to 12,50,000 per year, you are not going to be affected. Clear हुआ concept sir? लेकिन एक concept मैं बताना भूल गया, 10-12 में भी उन्होंने ये जो कहा है 60% taxable, 40% not taxable, that is not for excluded employee. Excluded employee का मतलब उनका विचार ये है कि जिनकी सैलरी 15,000 से कम है पर मंथ, उनको ये प्रोविजो ना लगे, उनका हमेशा ई रहे। ये भी एक पॉइंट, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं दी है, बट दे आर गोइंग टू बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये पॉइंट भी याद रखना, छोटे एम्प्लॉय अफेक्टेड नहीं होंगे। सर ये मैंने सेक्शन 10, 12A, 10, 13 और मैंने आपको एक शेड्यूल बता दिया। वो जो दुर्गेश जी ने बोला टाइम बहुत अच्छा, टाइम बहुत है, आराम से करना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। अदरवाइज मेरी स्पीड अगर आप सोचते तो मैं इस वक्त तक 10 सेक्शन कर चुका होता आराम से। मैं आइए, कोई नहीं, चिंता नहीं सर। अगला सेक्शन सुनिए, मैं बीच के जो बेकार है वो नहीं ले रहा। द सेक्शन कॉल्ड 1038। बहुत शोर मच रहा था कि ये पीरियड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, फ्रॉम 1 year दे विल इंक्रीज इट टू 3 years। स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स तो यही बता रहे थे, इट विल बी इंक्रीज टू 3 years, बट दे हैव नॉट डन इट। बट दे हैव डन अ वंडरफुल थिंग। इन 1038 में लिखा है इनकम फ्रॉम डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट। वहां एक प्रोवाइजो डाल दिया है इन 1038, प्रोवाइडेड दैट द अबव क्लास शैल नॉट बी एप्लीकेबल in case of an income from dividend which is chargeable to income tax under section 115 BBDA। कि ये क्लॉज जो एग्जेम्पशन की है, एक उन पर्सन को नहीं लगेगी जो 115 BBDA में कवर हो जाएंगे। तो आइए, ये कौन सा सेक्शन डाला? 115 BBDA। मैं बताने जा रहा हूं जो नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर द टोटल इनकम ऑफ, प्लीज नोट द वर्ड, इंडिविजुअल और HUF और ए फर्म रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी नहीं है, प्लीज नोट, कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स एनी इनकम exceeding 10 lakh by way of dividend, by way of dividend। आपकी टोटल इनकम में डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है, then such total income shall be taxable as under. Number 1, dividend will be taxable at a special rate of 10%, and the balance total income shall be taxable as if that is the total income. Clear हुआ? अगर आपको 10 लाख से ऊपर डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। 10% टैक्स देना पड़ेगा, ये डाल दिया। और लेकिन जिसको 10 लाख से कम डिविडेंड मिल रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इट कंटिन्यूज टू बी एग्जेम्प्ट इन योर हैंड। सो डिविडेंड अबव 10 lakh received during the year, आपको 10। इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों करा है आपको बताऊं। When dividend distribution tax was introduced, at that time the thinking was there are certain persons who are receiving dividend but they are not liable to pay tax, so their rate is 0. There are certain persons who are liable to pay tax at the rate of 10% because their slab is less, 20% और 30% मैक्सिमम। तो डिसाइड हुआ 0 को 30 का एवरेज कर 15% डिविडेंड टैक्स लगा दो। नुकसान किनको हुआ? लोअर वालों को। फायदा किनको हुआ? हायर वालों को। जहां 30% दे रहे थे, दे वर नाउ थ्रू द कंपनी दे वर पेइंग 15 प्लस सरचार्ज प्लस जो भी है, तो सेविंग वाज इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट नाउ अर्लियर यू आर पेइंग 30, now you are paying less than 30, so pay 10% if your dividend exceeds 10 lakh। तो ये कॉन्सेप्ट आया सर 115 BBDA।
मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, आपको भी नहीं पड़ा, इनको पड़ा होगा, किसी को नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो यहाँ बैठे ही ना होते। 10 लाख वाला क्या करेगा यहाँ का डिविडेंड, जिसके पास डिविडेंड 10 लाख आता है वो यहाँ क्या आके बैठेगा, वो तो कहीं और बैठेगा जाकर। 10 लाख जिसका डिविडेंड आता है उसकी इन्वेस्टमेंट देखो कितनी होती होगी, तो यहाँ बैठेगा वो, कुछ नहीं करेगा वो। तो वो हम लोगों को क्या फर्क पड़ा, हमें तो डिविडेंड इतना आता ही नहीं है। सो ये सुपर रिच मुकेश अंबानी बोला ना 110 करोड़ रुपए का फर्क पड़ा, पेपर में पढ़ा आपने, उसको 1100 करोड़ उसकी फैमिली को डिविडेंड आता है, 110 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा, 110 करोड़ रुपया टैक्स देगा। आनंद प्रेम जी विप्रो, उसको पड़ेगा, इन्फोसिस को पड़ेगा, हम लोगों को क्या पड़ेगा? सो सुपर रिच वालों को उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स कर दिया, बिकॉज दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जामिशन। क्लियर हुआ सर? सो दिस इज 10 क्लॉज, सॉरी 38 नहीं है, मेरे से गलती होगी, 1034, 1038 तो कुछ और है, 1034 डिविडेंड इज एग्जाम, 1038 तो मैंने बता दिया। 1038 में सिर्फ ये डाला है कि इफ यू लुक अप एग्जामिशन अंडर 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें एसटीटी देना जरूरी होता है, इसलिए वो माफ है। लेकिन रुकिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो खुल रहे हैं, दे डील इन फॉरेन करेंसी एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, दे डू नॉट पे एनी सर्विस टैक्स। तो उन्होंने कहा फिर इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो प्रोवाइजो डाल दिया दैट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विल गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर 1038 इवन इफ नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड बाय देम। तो ये टेक्निकल चीज है, आप लोगों के मतलब की नहीं है, इसलिए मैं आगे आ रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1048A टू यू एंड सेक्शन 1050 टू यू। 1050 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा जब मैं इक्वलाइजेशन लेवी की बात करूंगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन 10AA, यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको पता है इकोनॉमिक जोन में अगर 10AA में लगाएं, फर्स्ट 5 ईयर 100% रिडक्शन, नेक्स्ट 5 ईयर 50% रिडक्शन, नेक्स्ट 5 ईयर इफ यू सेटिस्फाई सर्टन कंडीशन अनदर 50% रिडक्शन है, और एग्जेम्पशन जो भी कही है। अब मंत्री जी ने कहा और सभी ने कहा है, all exemption and deductions are going to be withdrawn so that we will reduce the corporate tax ultimately from 30% to 25%. तो वो exemption withdraw करना चाहते हैं, तो इसलिए अब इसमें डाल दिया है कि that if you start a unit in a special economic zone on or after 1st April 2020, then 10AA will not be applicable. मतलब 10AA को face out कर देंगे, for no unit will get benefit of 10AA if they commence their production after first. I welcome Mr. Ashok Batra from Delhi, of course. चलिए सर, ऊपर ही आ जाइए तो कि नीचे बैठना? बैठिए बैठिए सर, ऊपर बैठ के सो नहीं सकते, वहाँ बैठ के आराम से सो सकते हैं, थके हुए हैं वो भी, इसीलिए क्या। चलिए सर, coming back. So what I'm trying to explain, that now things are going to be phased out. Special economic zone, those who start by 31st March 2020, they will get exemption for whatever period is there, but no unit established, any unit established on or after 1st April 20 will not be allowed benefit of exemption under 10AA. आगे चलते हैं सर। सेक्शन 17 में एक छोटी सी बात करिए, ज्यादा नहीं। Contribution by the employer to superannuation fund is exempt up to 1 lakh, up to 1 lakh, जबकि प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख है। तो इसमें भी कर दिया, contribution by the employer to approved superannuation fund shall not be taxable if does not exceed 1,50,000। ये छोटी सी बात है, आगे चलते हैं। आइए सर, we now have section 24 clause B। क्या कहता है? बड़ी मुलाकात हुई थी, बड़े दिनों से हम ये कह रहे थे, कोई सुनता नहीं था, अब सुनाई थोड़ी सी शुरू हो गई है। क्या था? इफ यू बोरो मनी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, इफ यू लेट आउट, एंटायर इंटरेस्ट इज अलाउड, बट इफ यू कीप दैट प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, you self-occupied property, the interest is eligible for deduction subject to maximum of rupees 2 lakh. ये 2 लाख था,
लेकिन 2 लाख तब था when 3 conditions are satisfied. Or if you don't satisfy those 3 conditions, the deduction was only limited to 30,000. 30, not 2 lakh. The conditions were the money must have been borrowed on or after 1st April 1909. The second condition was money must have been borrowed for the purpose of purchase or construction of a house property. And third condition was the house property should be purchased or constructed within a period of 3 years from the end of the financial year in money is borrowed. पहली और दूसरी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड कंडीशन थी you must purchase the property within 3 years from the end of the financial. और बिल्डर आजकल पोजेशन देते नहीं है. What is my fault? I make a payment to the builder in installment, borrowed my money and given to him, and he is not giving me possession. And since he is not given me possession, he gives me possession after 3 years. My deduction of interest is limited to 30,000. मुझे तो 1,70,000 का नुकसान हो गया, 51,000 मेरा टैक्स पल्ले से जाएगा और परमानेंट जाता रहेगा, क्योंकि वो तो 3 साल का नहीं था. हमने रिक्वेस्ट करी थी लेकिन पार्शियली मान ली गई. Now it is said 5 years. So period increased to 5 years. So now the house property must be purchased or constructed within a period of 5 years from the end of the relevant assessment year, end of the financial year in which money was. तो कुछ तो रिलीफ है. 2 एक्स्ट्रा साल हो गए तो काफ़ी कोशिश हो जाएगी कि now people are, government is after the builders to give the possession, otherwise you are liable to pay interest also. So the things have been accepted. This 3 year is going on from right from 1999. After 2016, this is the first time they have considered this proposal of increasing the limit from 3 year to 5 year. Clear, sir? This is 24 clause B. एक बड़ी विडंबना थी. आज 20 साल हो गए थे मुझे वो रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन कुछ सुनता नहीं था, सुना ही नहीं थी. क्या सुनने थी, क्या थी. एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. एरियर्स ऑफ रेंट. एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. वन इज अनरियलाइज्ड रेंट. द टेनेंट डिड नॉट पे रेंट, ही लेफ्ट और ही रन अवे, तो मुझे वो अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिलती थी, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से मिलती थी. एक है एरियर्स ऑफ रेंट. व्हाट इज दैट एरियर्स? देयर इज ए इंक्रीज इन द रेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. You might have gone to the court of law and telling them that this, I want to increase the rent of my tenant, he is not increasing. The court gave you order that rent should be increased right from 2004 till today, increase कर दो और वो पैसा अब आपको मिलेगा. तो arrear of rent is a different concept, unrealized rent is a different concept. Arrear of rent was covered under section 25B and recovery of unrealized rent was covered under 25AA. और एक 25A था वो जो पुराना था किसी और काम के लिए. 25AA में लिखा था if there is a unrealized rent which is subsequently recovered, it will be treated as the income under the head income from house property. Whether that property is in existence or not, whether it is with you or not, हम उसको income मान लेंगे क्योंकि हमने आपको पहले deduction दे दी है. और recovery of rent में लिखा था whenever you recover this rent, it will be treated as the income under the head income from house property. लेकिन arrears में लिख दिया था standard deduction of 30% shall be allowed. But unrealized rent में 30% की deduction देते नहीं थे, जबकि वो already 30% का नुकसान हम खा चुके थे क्योंकि वो gross annual value से less होता. बार बार कहते थे मान जाओ नहीं. अब क्या किया है? 25A, 25AA, 25B abolished. It is substituted by one section 25AA. Combined कर दिया. If there is a recovery of arrears of rent or there is subsequent recovery of unrealized rent, both will be treated as income taxable under the head house property, deemed income house property, and it will be eligible for standard deduction of 30%. So दोनों को 30% मिलेगा, चाहे वो arrear हो चाहे वो unrealized rent. ये था सर्च. अब जरा अगला पॉइंट सुनना और बड़े ध्यान से सुनना, काफी ये इफेक्ट करेगा हम लोगों को. एक सेक्शन है 28 क्लॉज VA. क्या कहता है सेक्शन 28VA? नॉन कंपीट फी इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ बिजनेस. नॉन कंपीट, पहले तो नॉन कंपीट फी जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आई
नॉन कम्पीट फी शुरू हो गया कि आप अपना काम बंद कर दो, ये 2 करोड़ रुपए ले लो, प्लीज डोंट कम्पीट विद अस एंड वी गिव यू 2 करोड़, वी गिव यू 1 करोड़ और वट एवर इज इट। ये कंपनियों ने शुरू किया, कितनी आई, क्वालिटी बंद हो गई, थम्स अप बंद हो गया, कई कॉलोनी ने नॉन कम्पीट फीस दी है उनको कि प्लीज डोंट कम्पीट विद अस, लोकल ब्रांड को बंद करा दिया था। एंड नॉन कम्पीट फीस टैक्सेबल अंडर बिजनेस हेड। ये बिजनेस था, लेकिन प्रोफेशन की नॉन कम्पीट फी नहीं थी। फ्रॉम दिस ईयर, if you receive non-compete fee for not carrying on the profession, that too will be taxable. That too will be taxable because now the word uses for non-compete fee for not carrying on any business or profession. तो प्रोफेशन अब ऐड कर दिया। तो कोई आदमी ये सोच के कि मैं नॉन कम्पीट फी ले लूँगा, टैक्स प्लानिंग कर लूँगा और मैं अपना प्रोफेशन छोड़कर कहूँगा ये तो टैक्सेबल ही नहीं है, अब वो टैक्सेबल हो गया, नॉन कम्पीट फी। क्लियर हुआ सर? इसी से मैं कुछ एक चीज और लेके जा रहा हूं। आई एम टेकिंग यू टू सेक्शन 55। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाला है। सर, देयर इज ए जजमेंट ऑफ BC श्रीनिवासा शेट्टी, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जिसमें लिखा है सेल्फ जनरेटेड एसेट कैपिटल गेन, इफ यू ट्रांसफर ए सेल्फ जनरेटेड एसेट देयर इज नो कैपिटल गेन बिकॉज द मशीनरी प्रोविजन फेल, cost of acquisition cannot be computed and therefore there is no liability of tax on that. ये पहले जजमेंट थी पुरानी। उसके बाद लॉ में अमेंडमेंट आई थी कि even if there are self-generated asset, there are 7 kinds of self-generated asset where even if it is self-generated, they will be liable to capital gain and the cost of acquisition for those 7 assets will be taken as nil. वहां लिख दिया कॉस्ट निल होगी और पूरा अमाउंट कैपिटल गेन माना जाएगा। बाकी पे अभी भी प्रॉब्लम है सेल्फ जनरेटेड एसेट पर, लेकिन 7 आइटम को क्लियर कर दिया, देयर विल बी लायबल फॉर कैपिटल गेन। अगर याद हो तो वो उसमें थी एक गुडविल ऑफ अ बिजनेस, दूसरी थी ब्रांड नेम और ए ट्रेड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस, 3 थी राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एन आर्टिकल और ए थिंग, 4 थी राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, 5 थी टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, स्टेज कैरेज परमिट। These were the 7 items. Even if they are self-generated, the cost of acquisition will be taken as nil and there will be a capital gain viable to tax. Worth the goodwill of a business. अब लिख दिया गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन। तो अगर आप प्रोफेशन की भी पहले गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेचो, अपना बंद करो और दो और कहो जी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हम ये प्ली लेते थे कि अगर एक सर्जन है तो नाम सर्जन का चलता है, ना कि उस क्लिनिक का चलेगा, और सर्जन चला गया तो गुडविल किस बात की। अगर दुर्गेश बुद्ध जी अपनी कंपनी के वो हैं और आज कहे मैं मुझे तो गुडविल दो और मैं जा रहा हूं, तो अब तो इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिटायर मत होना, अब नहीं होना, क्योंकि गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन इफ यू सेल नाउ देयर विल बी ए कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन विल बी टेकन एज nil, like goodwill of a business। क्योंकि सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दिया nil और सेक्शन 55 में डाल दिया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल आल्सो बी टेकन एज nil। तो इसलिए पूरा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता। पहले तो हम कहते थे जेब में डालो कोई टैक्स नहीं लगता। क्लियर हुआ सर? ये आया, मैंने ये थोड़ी कहा था ये रिटायर होते, बता वो डीम्ड रिटायरमेंट दिखा देते और पैसे ले लेते, वो अलाउड था। अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। चलिए सर 28 VA के बाद आगे जा रहे हैं। आपके मतलब का नहीं है, मेरे क्लाइंट के मतलब का जरूर था। एक 32 सेक्शन था है और 32(1)(2) IA में एडिशनल डेप्रिसिएशन है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती है टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टू ए यूनिट विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, अब पावर ग्रिड है, क्लाइंट था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में कोई जनरेशन नहीं होती, पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, पावर ग्रिड ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी। किसी की इलेक्ट्रिसिटी ली, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई हुई है और ट्रांसमिशन लाइन के बाद दिल्ली में BSES, NDSL वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसी और के हाथ में। अब वो ट्रांसमिशन क्योंकि वर्ड नहीं था, दे वर नॉट गेटिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी विच दे हैड इंस्टॉल्ड। इस बार लॉ चेंज कर दिया फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
सो इधर जनरेशन है या ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों को वो डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन की मिलेगी। वो अलग बात है अगले साल से एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन 40% से ज़्यादा हो ही नहीं सकेगी। अभी नहीं, अभी 40%। आप सोच रहे हैं मतलब अभी 100% भी आइटमें हैं, प्लांट एंड मशीनरी 80% भी है, 60% भी है, कंप्यूटर एंड ऑल दैट, सर दे आर गोइंग टू डू इट, दैट मैक्सिमम विल बी 40%। वेट एंड वॉच। ये क्यों होने जा रहा है इसका भी बता दूं, अभी नहीं होगा, थोड़े दिनों में। हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैट को हटा दो। मैट हटेगा, कहते जी कैसे हटेगा? मैं कहा जब आप एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन खत्म कर देंगे, देन वेयर इज द डिफरेंस? एग्जेम्पशन डिडक्शन खत्म हो गई तो वही बुक प्रॉफिट होगा और वही इनकम टैक्स का प्रॉफिट होगा। सो व्हाई मैट? ये कहता है डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम है। इन अकाउंट इन इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स आर डिफरेंट एंड इन कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन रेट्स आर डिफरेंट। तो उसकी वजह से क्या है, आप डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लोगे तो वो डिफरेंस होगा, डेफर्ड टैक्स डेफर्ड लायबिलिटी जो आप करते हैं वही तो आ रहा है, इसलिए मैट की चक्कर आ रहा है। अब वो जो हम रेट ही कम कर देंगे तो ग्रेजुअली आप देख लेना 2-3 साल के बाद मैट खत्म हो जाएगा। मैट एएमटी भी खत्म होना है क्योंकि डिडक्शन खत्म हो जानी है, एटीआई एटीआई भी एटीसीआई, और ये मैट भी इस कंट्री से खत्म हो जाएगा। तो दिस वाज द राइट स्टेप टुवर्ड्स अबॉलिशन ऑफ मैट इन दिस कंट्री, क्योंकि अभी तक आप 100% 80% लेकर उसका एडवांटेज ले लेते थे। ये चीज है सर, आएगा। अब आया 32AC। आपको पता है एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, जिसको 100 करोड़ का लगाओ तो 15% था। बाद में जेटली जी ने इसको कर दिया था 25 करोड़ पर ईयर, 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इसमें वर्डिंग थी that you must have acquired and installed plant and machinery for a sum exceeding 25 crore, you will get 15% reduction. The word used was acquired and installed. और ये डिफरेंस पहले एडिशनल में भी था। AO कहता था acquired and installed should be in the same year, then only I'll give you 15%. If you acquire in this year and install in the next year, the depreciation is not, because the word is not or, it is acquired and installed. ये डिस्प्यूट चल रहा था, हमने कहा ये डिस्प्यूट बहुत चलते हैं। अब वो डिस्प्यूट को सेटल कर दिया। Acquired in a particular year for exceeding 25 crore and may be installed in the subsequent assessment year. You will get the deduction, but deduction will be given to you only in the year of installation. वो तो ठीक है ना, अक्वायर कर लो 25 करोड़ की, एलिजिबल हो गए, लेकिन उसको इंस्टॉल कर दो, जब इंस्टॉल करोगे 25 करोड़ में 15% ले लो। सो ये किया है, लेकिन ये खत्म होने वाला 31 मार्च 2017 पे। अब उसके बाद आएगा तो देखेंगे, बट अभी तो ये लॉ आया 32AC का। सर मैंने जब कहा कि काफी फेस आउट होने वाला है, तो साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शंस सब वेटेड डिडक्शंस हैं। आप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को दीजिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को दीजिए, फॉर कैरिंग ऑन ए साइंटिफिक रिसर्च यू आर अलाउड 175% डिडक्शन, वेदर द रिसर्च इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। 175%। अब इसको फेस आउट करके उन्होंने 100% कर देना है। नॉट दिस ईयर, प्रीवियस ईयर 17-18 दिस हैज बीन रिड्यूस टू 125 और अल्टीमेटली 100 हो जाए। आप किसी कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिए तो 125 था, नेक्स्ट ईयर इट विल बी रिड्यूस टू 100%। आप किसी नेशनल लेबोरेटरी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी को दीजिए फॉर दिस, उसके लिए 200% था। इफ यू डू योरसेल्फ रिसर्च नोटिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी 200% रिडक्शन था। ये 200% विल गोइंग टू बी रिड्यूस टू 150 नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम 2021 इट विल बी रिड्यूस टू 100%। सो सारी जो एग्जेम्पशनें हैं और वेटेड रिडक्शंस हैं ये खत्म कर देनी है, उसके बाद 25% आना है। तो ये फेस आउट हो रहा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और वो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 150% है, इसको भी फेस आउट करके 100% करने जा रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक 36 सबसेक्शन 17A है। आप बैंकों का ऑडिट करते हैं तो आपको पता है banks are allowed to create a provision for bad and doubtful debt which is allowed as deduction under Income Tax Act to the extent of 7.5% of the total income plus
10% ऑफ द एवरेज रूरल एडवांसेस, उसका वो प्रोविजन कर सकते हैं, एक्चुअल बैड डेट नहीं है, प्रोविजन इज अलाउड एज डिडक्शन। नॉन उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन बैंक आर अलाउड प्रोविजन अप टू 5%। ये सेक्शन 3617A है, इट इज ए प्रोविजन नॉट ए एक्चुअल बैड डेट। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी उसको ये एलिजिबल नहीं था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, एक्चुअल बैड डेट वाज अलाउड। नाउ clause C has been inserted in section 3617A, saying that even non-banking finance company shall be eligible to make a provision for bad and doubtful debt, and they will be allowed a deduction 5% of the total income before claiming deduction under this section and before claiming deduction under chapter 6A. तो 5% तक वो भी प्रोविजन कर सकेंगे, कौन? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी को ये प्रोविजन अलाउ कर दिया है। ये रिजर्व बैंक की सिफारिश हुई कि उनके भी तो वो होते हैं डाउटफुल डेट या एनपीएस होते हैं, सो अलाउ देम द प्रोविजन, तो वो कर दिया है। नेक्स्ट चेंज, ये चेंज तो कमेटी ने कहा था और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाराज भी हो गए कि ये 44 AD में क्या करा दिया। प्रेजेंटिव इनकम which was 8% if the total turnover does not exceed 1 crore, now it will be 8% presumption provided the total income does not exceed 2 crore. 2 करोड़ का टैक्स होगा, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप प्रेजेंटिव इनकम को ऑप्ट कर सकते हैं एंड प्रिज्यूम योर इनकम टू बी मिनिमम 8% और more than 8%, not required to maintain any books of account, not required to get debt. सब कुछ अच्छा किया लेकिन एक बेड़ा गर्क कर दिया इसने। एक प्रोवाइजो हुआ करता था that in case of a partnership firm, after computing 8%, you will be allowed to claim a deduction of remuneration to the partner and interest on capital and loan to the partner as per section 40 clause B. ये प्रोवाइजो डिलीट कर दिया, मतलब फर्म तो सब मर गए। फर्म को तो अब 30% टैक्स देना पड़ेगा, वॉट एवर दे presume. Earlier they could plan out in such a manner that presume 8%, then give the remuneration to the partner and interest to the partner so that the firm income is reduced and they are payable, they pay tax at the slab rate, slab may be 10, maybe 20, and each will get a benefit of 250 also. वो कहते हैं नहीं, 2 करोड़ वाला आदमी के पास और भी इनकमें होती हैं, इसलिए वो 2.5 लाख का बेनिफिट वहाँ ले लेगा। So now that proviso has been deleted. तो फर्म अब को डिडक्शन नहीं मिलेगी प्रेजेंटिव इनकम से ऑन अकाउंट ऑफ रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन टू द पार्टनर। लेट्स से क्या होता है जरा सुनिए। चलो ये तो कुछ अच्छा किया, एक और मुसीबत कर दी, एक 44 AD सब सेक्शन 4 डाल दिया है। जरा सुनने वाला सेक्शन है, क्या करा है that if you are opting for 44 AD, आप ऑप्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप ऑप्ट कर लिया, then next 5 consecutive assessment year, आज आपने करा, next 5 consecutive assessment year, if you want to opt out of this scheme, मतलब आप यहां में नहीं जाना चाहते कि मेरी नहीं है, then next 5 years you will not be allowed to enter this scheme. मैं एग्जांपल देता हूं, 17-18 पे आपने ऑप्ट कर लिया कि मैं जा रहा हूं, 18-9 में 19 में भी आपने 44 AD ले लिया, 20-21 में कहा नहीं, ये तो मेरा, इसमें तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ा है, लेट मी कम आउट, क्योंकि 5 साल अभी नहीं हुए, आप ऑप्ट आउट कर गए, तो दिस ईयर ऑप्ट आउट किया, नेक्स्ट 5 मोर असेसमेंट ईयर यू विल नॉट बी अलाउड टू गो फॉर 44 AD। तो लॉक इन पीरियड कर दिया, ये प्रॉब्लम आया, ये 5 साल तक आपको इकट्ठा है तब जाकर ये बड़ा अजीब है। लेट्स सी, विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व कि ये क्यों डाल दिया, क्योंकि हमारी मर्जी है वेदर वी गो अंडर 44 AD। वो इसीलिए डाला होगा ना कि वो उधर से वो प्लानिंग खत्म हो जाए और इनको यहाँ पर टैक्स मिल जाए, टैक्स तो मिलता, लेकिन ये जो चीज़ डाली है इससे प्रॉब्लम आएगी 44। बाकी वही है, इफ यू शो इनकम लेस देन दैट यू आर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, वो तो वही है। एक ये प्रपोजल था इस कमेटी का कि इफ देयर इज अ प्रेजेंटिव इनकम फॉर बिजनेस, why not there is a presenting income for professionals? And the recommendation was their gross receipt should not exceed 1 crore and presenting income should be 1/3, 33 1/3%. वो कॉन्सेप्ट ऑफ 33 1/3% समझना क्या था, 1 करोड़ ग्रॉस रिसीट है तो TDS कटा होगा 10%,
तो कितना टैक्स दे दिया? 10 लाख। तो 33% इनकम देंगे तो 33% का 30% कितना होता है? वो भी 10 लाख होता है। तो कहा टीडीएस कटा होगा तो हमें जेब से कुछ देना नहीं पड़ेगा या 2-4 हज़ार देने पड़ेंगे सरकार के, तो इसको 33% कर दो। लेकिन पार्शली एक्सेप्ट हुआ, ग्रॉस रिसीट 50 लाख कर दी और इनकम प्रिज्यूम 50% कर दी। डॉक्टर्स बहुत खुश हैं, द डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही सारा कैश आता था, हम कहाँ से अकाउंट बनाते हैं, पता ही नहीं किसका नाम लिखें किसका नाम नहीं लिखें, क्योंकि जो देता है कैश दे डॉक्टरों के पास तो चेक आते ही नहीं है। चेक आएगा भी कैसे? वो बाहर ही नहीं निकलने देगा, पहले कैश नहीं मिल जाएगा उसको, चेक कैसे ले लेगा? सो डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी। इससे तो बड़ा मजा आ गया। कहते क्या करेंगे? कहता अब इनकम दिखा देंगे। अगर हमारी 40 लाख हमने ग्रॉस रिसीट दिखा दी, ये हमारा मिनिमम 50 है, तो 50 खर्चा बैंक से निकाल के जेब में डाल देंगे और बाकी 50 के ऊपर टैक्स दे देंगे। हमें तो आराम है, कोई सवाल पूछना नहीं है, कोई यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, यू डोंट नीड टू मेंटेन एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको तो फायदा हो गया। डॉक्टर कह रहे हम तो ऐसे ही करेंगे, और कहता 50 तो मिनिमम है, अगर ज्यादा दिखाना जब जरूरत पड़ेगी ज्यादा दिखा देंगे। ये तो डॉक्टर वगैरह बहुत खुश है, लॉयर भी खुश थे, लेकिन सर्विस टैक्स लग गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कुछ को, सबको नहीं आई है, सबको नहीं। सीए भी कर सकते हैं आप भी, अगर 50 लाख से कम वाले जो हैं अपनी इनकम 50% खर्चे दिखा दिए, पूछना थोड़ी है किसी ने। और आपने कौन सा आर्टिकल को वो देना है स्टाइपेंड, जिसके लिए आपको दिक्कत है, खर्चे आते देते तो है ही नहीं हम। तो इसलिए कोई चिक्का नहीं करो, 50% खर्चे दिखाइए, 50% में इनकम दिखाइए। नो नीड टू मेंटेन, यस, बट इन सर्विस टैक्स यू विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट देयर ऑफ कोर्स, बट नॉट फॉर इनकम टैक्स। यू कैन गो हैड, देयर इज, पर इसमें भी कोई पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट और सैलरी वाला नहीं है। So 44 ADA is similar line, but यहाँ पर वो 5 लाख का लॉक-इन पीरियड नहीं है। There is no lock-in period of 5 years in the case of professionals. They may come out, they may go in, they may come out anytime they want. They can come in, come out. There is no problem. So ये 44 ADA का concept आया है सर। अगला concept जो important है वो दे रहा हूँ। एक section है 47 clause XII 13B। आपको पता हो ये 13B आया था, यू कैन कन्वर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू LLP। पीछे जब LLP कॉन्सेप्ट आया तो इसे यू कैन कन्वर्ट प्राइवेट लिमिटेड इनटू LLP, देयर विल बी नो कैपिटल गेन प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन ऑल एसेट ट्रांसफर्ड, ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर्ड, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, द टर्नओवर ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 60 लाख। याद आया? उनको तो नुकसान हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते थे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी उनका टर्नओवर 60 लाख का था ही नहीं, तो वो तो अपना मर्ज कर रहे थे और दबा के कर रहे थे कि चलो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, मर्ज करके LLP बना दो, देयर इज नो टैक्स। और LLP बनाने में क्या फायदा होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो जाना है आगे से, पुराना तो चलो अलग है, आगे से खत्म हो जाना है। रिजर्व भी 3 साल के बाद आपके बन जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू पे। तो वो कन्वर्ट कर रहे थे, तो अब एक कंडीशन और डाल दी। द थर्ड कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ द एसेट हेल्ड बाय द असेसी इन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपको ये ट्रांसफर नहीं करने देंगे। ये 4713B का चेंज आया जो मैंने इंपॉर्टेंट था आपके आगे रखा। बाकी तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन, या पिछली बार ही आया था, एक स्कीम कंसोलिडेट करके यूनिट वो म्यूचुअल फंड उसको कंसोलिडेट कर देंगे, उसके प्रोविजन आ जाए। आगे चलते हैं सर। वी नो दैट देयर इज सेक्शन 80 रेड विद सेक्शन 139(3). क्या कहता है? नो लॉस कैन बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड अनलेस द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड ऑन बिफोर ए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। उसमें कौन कौन से लॉस थे? बिजनेस लॉस 72, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस। उसमें हाउस प्रॉपर्टी लॉस नहीं था, वो अभी भी नहीं है। एक था लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 73A। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से? जिनका 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होता है अंडर 35 AD। वो 11 बिजनेस थे। उस बिजनेस को वो कहते थे लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड लेट, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 80 में डाला नहीं था, 139(3) में डाला नहीं था। लीजिए इस साल से डाल दिया। लॉस ऑफ 73A2
of a specified business will not be allowed to be carried forward unless the return of income is filed on or before the due date and it is assessed. और 139(3) में भी डाल दिया. So be careful. जो 100% reduction ले रहे हैं capital exemption 35 AD में covered है, they should now file the return on due date. Otherwise, their loss will also not be allowed to be carried forward. आगे जरा सुनिए. अब आया 80CCD. वो तो वही है पेंशन स्कीम ट्रस्ट. उस पर एक चेंज कर दिया. पेंशन स्कीम ट्रस्ट का 40% तो माफ कर दिया अगर लमसम कम लोगे, और बाकी आप एनुटी लोगे वो टैक्सेबल होगी. लेकिन एक चीज चेंज कर दी, that annuity which you are receiving, if that person unfortunately dies and the annuity is now received by the legal heir, that will be now exempt. तो एक exemption दे दी कि अगर annuity को exempt कर दिया if it is received by the legal heir. ये करा है 80CCD में. नेक्स्ट सेक्शन 80EE. ये पहले भी एक यशवंत सिन्हा साहब लाए थे, उसके बाद वो एक साल के लिए था, अब फिर एक आ रहा है. हाउसिंग के लिए आप लोन लेते हैं, यू आर अलाउड डिडक्शन अंडर 24B. एक और आ गई 80BB. इफ यू बोरो मनी फॉर परचेज ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी and you satisfy certain condition, then you will be allowed an additional deduction of rupees 50,000. Condition number 1, that you should not own any residential house property. This is the first property. You are borrowing, the loan is sanctioned between 1st April 2016 and 31st March 2017. The amount of loan sanctioned should not exceed 35 lakh. Purchase of the property value should not exceed 50 lakh. If all these conditions are satisfied, then the interest which you are paying on this borrowing will be allowed as deduction, additional deduction. वो ऊपर वाली अलग है, which is 50,000. ये section 80EE डाला है. Next section 80JJ. Self-employed person were not getting HRA जो मिलता है वो employee को मिलता है, and they get exemption of HRA under section 1013A. Self-employed person or employee who were not entitled to HRA but were paying rent for their residential accommodation was allowed a reduction under 80JJ. लेकिन उसकी लिमिट बहुत कम थी. Minimum of 3 limit थी. Rent paid minus 10% of total adjusted total income, 25% adjusted total income, and third limit थी 2,000 rupees per month. 24,000 से कब ज्यादा तो डिडक्शन मिलता ही नहीं था. अब उसको बढ़ाकर तीसरी लिमिट को चेंज कर दिया. 2,000 has been raised to 5,000. So 60,000 हो गया. Self-employed person paying rent for their residential accommodation. ये किया है. अब सर 80IA, 80IAB, 80IB, ये सब के सब 20 और 21 के बाद कोई इंडस्ट्री लगाएंगे ये अलाउड नहीं होगा. ये भी फेस आउट करने जा रहे हैं. नो, नॉट अलाउड. हाँ, लेकिन एक सेक्शन डाल दिया 80IAC for startup. For startup, those eligible startup business, you form a company, get the company incorporated between 1st April 2016 and 19, go for a startup project, 100%, it's a manufacturing unit or service unit, 100% of the profit from this startup project will be out as deduction for a period of 3 years. And you can choose these 3 years out of the 5 years. You may start consecutive 3 years, ये allowed होगा. ये startup के लिए डाला, only for few time, लेकिन इसके बाद ये खत्म हो जाना है. अगला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत अच्छा डाला है. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दैट सेक्शन इज, ध्यान से सुनना पड़ेगा, 80JJAA. किसको डिडक्शन मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन. एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन. इफ यू आर एन assessee who is covered under 44AB, मतलब आपका टैक्स ऑडिट होता है. यू आर ए बिजनेस assessee और आपका टैक्स ऑडिट होता है. एंड यू एम्प्लॉय वर्कर्स, तो जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसका 30% डिडक्शन आपको मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच यू हैव एम्प्लॉयड देम. 3 साल तक 30% डिडक्शन मिलेगा. आप वर्कमैन एम्प्लॉय करिए. आप एक यूनिट हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, पहली बार न्यू बिजनेस है, जितने भी आदमी रखेंगे
10, 4, 5 लो, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जितनी सैलरी देंगे, सैलरी तो 37 में अलाउड हो जाएगी, लेकिन आपको 30% डिडक्शन 80JJAA में दे देंगे। वेदर यू आर ए ट्रेडर और ए मैन्युफैक्चरर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, लेकिन रुकिए, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड 15,000 पर मंथ, 25,000, सॉरी 25,000, 50 तो वहां था, 25,000 पर मंथ। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी 240 डेज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट। एंड वो जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड ESI का गवर्नमेंट नहीं करती हो, इन एम्प्लॉय को रखिए। हम आपको जितनी सैलरी उनको दिया, सपोज आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उनको सैलरी दी इस साल 10 लाख, 4 लाख रुपए, थोड़े से हैं 4 लाख, 4 लाख का डिडक्शन अब ले चुके हैं। 30% ऑफ 4 लाख, 1,20,000 डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट ईयर, 120 मिलेगा नेक्स्ट ईयर, 120 मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ये डिडक्शन है एक्स्ट्रा। रुकिए, 1 साल के बाद आप एग्जिस्टिंग हो जाएंगे, और सब एग्जिस्टिंग को भी मिलेगा। नाउ एम्प्लॉय एडिशनल वर्कर, पहले वर्कर होते थे मिनिमम 10% इंक्रीज होना चाहिए, अब कोई लिमिट नहीं है। आपने 4 आदमी भी ज्यादा रख दिए, उन 4 को जो सैलरी देंगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन वही 25,000 to 40 डेज कंट्रीब्यूशन नॉट बाय द गवर्नमेंट, तो आपको ये मिलेगा। तो मतलब जो भी आदमी इंप्लॉय करेगा, हम उसकी सैलरी का 30% मतलब 90% आपको देंगे 3 सालों के अंदर एज ए डिडक्शन। ये कॉन्सेप्ट आया सर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो हमारे हाथ में है ना, ये सिर्फ बिजनेस के लिए। एग्जिस्टिंग यूनिट भी हैं, वो भी कल लगा लें, मिलेगा उनको। मतलब आज आपके पास 50 वर्कर हैं, आपने 2 भी लगाए, लास्ट 31 मार्च का देखना है, 2 भी एक्स्ट्रा लगाए, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। जितने की सैलरी एडिशनल है उसका 30% ले लीजिए। सिंपल है सर, कोई मुश्किल नहीं। वो CA सर्टिफिकेट लेना वो तो बात चीज अलग है, बट इट इज अ बेनिफिट विच इज गोइंग टू बी अलाउड फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? 80JJAA आगे चल रहे हैं। 87 में कर चुका हूं मैं, वो नहीं कर रहा। 119, 124 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आइए 139 में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है 139 सेक्शन में, रिटर्न ऑफ इनकम में। पहले तक माइनर चेंज है, वो बता दें। माइनर चेंज ये अगर आपको मालूम है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF etc, यू हैव टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम इफ योर टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन under chapter 6A or before claiming exemption under 10AA exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. Before claiming उनको रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे टैक्स बनता है या नहीं बनता। लेकिन सपोज करिए उस इंडिविजुअल का 1038 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो तो एग्जेम्प्ट है, वो रिटर्न ही नहीं भरता था। अब इसको ये भी इंक्लूड कर दिया, बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 1038 इट एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टैक्स, ही विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न। बाकी चीजों में ये भी ऐड कर दिया 1038। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज जाने जा रही है। हम सब बैठे हैं, 90% लोग हम बिलेटेड रिटर्न भरते हैं। इन टाइम रिटर्न तो हम भरते तभी हैं जब का टैक्स ऑडिट की जरूरी जाना है, बाकी रिटर्न ने तो हमेशा ही बिलेटेड होती हैं। क्योंकि बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट। 139(4) और कभी कभी तो हम 141 का इशू कराकर बिलेटेड रिटर्न भर देते हैं। चलिए 139(4) चेंज हो गया। Now belated return can be filed before the end of the relevant assessment year or before the assessment is complete, whichever is earlier. मतलब 31 मार्च के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकेगी। वो 1 साल गया तो काम शुरू कर दीजिए कि वो खत्म होते ही 31 मार्च तक सबकी रिटर्न चली जाए। जिसकी नहीं गई वो दोबारा जा ही नहीं सकती है। सो बिलेटेड रिटर्न नाउ इट इज नॉट 1 more extra year, it is only the same assessment year in which you have to file the return, that will be 31st March. तो ये काम बढ़ गया, मतलब अब यार रिलैक्स नहीं कर सकते। तो रिटर्न देख लीजिए सबके। लेकिन पहले बड़ा मेरे को टेलीफोन आया करते थे, सर बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, गलती रह गई है, ये गलती हो गई, ये चीज रह गई, ये मिस कर गया, ये इनकम नहीं डाली, अब क्या करूं। बिलेटेड रिटर्न तो रिवाइज ही नहीं होती, क्योंकि कुमार जगदीश चंद्र सिन्हा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और सब फंसते थे। इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जब आप रिटर्न फाइल करें और स्क्रूटनी हो, उस टाइम पर अगर आपको देखते हैं कि कोई क्लेम रह गया है, कोई डिडक्शन रह गई है, तो आप उसको एओ को कहो अलाउ कर दे।
ये बात तो नहीं मानी, लेकिन ये बात मान ली है कि बिलेटेड रिटर्न नाउ कैन बी रिवाइज्ड, नाउ यू कैन रिवाइज दी बिलेटेड रिटर्न। तो गलती अगर आपसे हो गई है तो रिवाइज कर दीजिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट। सो गलतियां करिए और फिर आराम से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 139(5) को चेंज कर दिया है, ये ठीक किया सर, इट इज वेरी गुड, क्योंकि हमेशा परेशानी होती थी कोई भी मिस्टेक हो, यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस बिकॉज देयर वाज नो पॉसिबिलिटी। नाउ एटलीस्ट मिस्टेक्स आर बाउंड टू बी देयर, और आप रिकवाइज कर दीजिए, जो पीरियड है वो कर देते हैं। ये 139(5) में चेंज आया है। नेक्स्ट चेंज 143(1), प्रोसेस ऑफ रिटर्न होती है और सीपीसी प्रोसेस करके भेजता है। जब वो प्रोसेस करता है तो 2 एडजस्टमेंट 1A में अलाउड है, सबको पता है। पहली एडजस्टमेंट है अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, एंड सेकंड है इनकरेक्ट क्लेम मेड इन द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ये वो एडजस्टमेंट होकर आ जाती है। अब 4 आइटम और डाल दिए जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। सपोज यू हैव क्लेम्ड ए सेट ऑफ लॉस बट रिटर्न इज फाइल्ड लेट, तो वो उस जो सेट ऑफ था उसकी रिटर्न लेट फाइल हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेट ऑफ डिसअलाउ करके आपके इनकम को बढ़ा देगा। सेकेंड, you had claimed deduction under 10AA, 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, but return has been filed late, क्योंकि वहां तो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करो तो मिलना है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको डिसअलाउ कर ऐड कर देगा, कंप्यूटर डिसअलाउ करके ऐड कर देगा। आपने एक लॉस क्लेम कर लिया, रिटर्न लेट फाइल करने, उसको भी कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करेगा। एंड 5 चौथा लास्ट, जो 26AS में TDS कटा हुआ है उसकी अगर आपने इनकम नहीं दिखाई तो ऑटोमेटिकली वो इनकम लेकर बढ़ा देगा आपकी कंप्यूटर। 26A से मैच करेगा, देखेगा ये इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, लेट्स इंक्लूड दैट इनकम, या 16 या 16A डाल देगा। अब 26A वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर गलती हुई, लेकिन ये डरने की जरूरत नहीं है, ये चारों चीजों के लिए आपको शो कॉज नोटिस आएगा। दे विल गिव यू शो कॉज नोटिस एंड दे विल टेल यू रिप्लाई विद इन 30 days of the show cause notice. If you reply, then they will take action accordingly, and if you don't reply, automatically it will be adjusted. Be careful, you have to reply for that show cause within a period of 30 days, then only this they may not add, otherwise हो जाए। तो ये 143(1) की इंपॉर्टेंट चेंज है। सो बी केयरफुल कि ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसका शो कॉज देख लेना। और 26AS में कई आइटमें गलत भी आ जाती हैं, तो इसलिए आप बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट सर, एक सेक्शन 143(1D डाला था इन्होंने, बहुत खराब सेक्शन था। क्या डाला था? इफ यू बीन इश्यूड ए नोटिस अंडर 143(2) then there is no need for processing of return under 143(1). मतलब क्या करते थे, 143(2) का नोटिस दे देते थे और जो हमारा रिफंड बनता था वो प्रोसेस ही नहीं करते थे, क्योंकि प्रोसेसिंग हुई नहीं, और हमारा रिफंड रोक लेते थे और असेसमेंट के बाद वो एडजस्ट कर देते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बना क्यों? ये लॉ ने नया शुरू कर दिया था, 143(2) दे दो बस, अब कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। इस कमेटी ने यही कहा था प्रोसेसिंग होना जरूरी है। चलिए उन्होंने 143(1D डिलीट नहीं किया, प्रोवाइडेड कर दिया। क्या कर दिया? प्रोवाइडेड 143(3) असेसमेंट कैन नॉट बी डन विदाउट प्रोसेसिंग द रिटर्न अंडर 143(1). तो करना तो उनको पड़ेगा 143(1) में, तभी होगा। ये सर 143 में चेंज आया है। 153 एंड 153B ये तो वही पुराना चीज ले आए हैं। पहले टाइम बार्ड केसेस होते थे, the completion of assessment had to be done within a period of 2 years from the end of the relevant assessment year. अगर TPO के जाता है तो 3 साल थे, रीअसेसमेंट का 1 ईयर था फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, सर्च केस का 153B में 2 ईयर था फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द सर्च वाज कंडक्टेड। सभी पीरियड को 3 महीने कम कर दिया है। 31 दिसंबर को आप खाली हो जाएंगे और फिर बिलेटेड रिटर्न भरना शुरू कर देना। दिसंबर तक तो आपका खत्म हो जाना स्क्रूटनी असेसमेंट।
31 दिसंबर के बाद स्क्रूटनी होनी नहीं है क्योंकि टाइम पार्ट हो जाएगा। सो ऑल पीरियड रिड्यूस टू 21, 3 महीने का पीरियड कम कर दिया। पता नहीं क्यों करा है, पैसे इकट्ठे करने का सिस्टम है और कुछ नहीं है, ताकि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, डिमांड आएगी, डिमांड 30 डेज में देंगे तो पैसे इस साल के होंगे, अगर 31 मार्च होगा तो पैसे अगले साल के मारे। क्या ये कमर्शलाइजेशन है और कुछ नहीं। 21 9 मंथ्स ये कर दिया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज करी है, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसी 153 में सब सेक्शन 5 डाला है, वो अभी बताता हूँ सर। नेक्स्ट चेंज सर, जो नेक्स्ट चेंज है वो प्रोसीजरल मैटर है, टीडीएस के पर 192 डीए था, 192 सी, 194 डबल बी है, 194 डबल बी। जो रेस हॉर्स है, उस रेस हॉर्स का एग्जेम्पशन लिमिट 5000 थी, जबकि लॉटरी की एग्जेम्पशन लिमिट 10,000 की थी, उसको भी 10,000 कर दिया है। 194C की लिमिट 30 या 75 है, 75 हैज बीन रेज्ड टू नाउ 1 लाख। 194D की लिमिट 20,000 थी, उसको 15,000 कर दिया है। 194H या 194G इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन का 1,000 था, उसको 20,000 कर दिया है। और जो आपका कमीशन है वो 5 का 10 कर दिया है, और टीडीएस का रेट 10 का 5 कर दिया है। कुछ टिंकरिंग की है, रेट हैज बीन रिड्यूस। और 194 डबल ई, जब नेशनल वो थी नेशनल सेविंग स्कीम, जिसका विड्रॉल करते थे, उसका 20% था, दैट इज बी रिड्यूस टू 10। सो स्मॉल टिंकरिंग। लेकिन एक टिंकरिंग में एक बहुत अच्छी चीज करी, जो वो लोग हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। अभी तक एक 15G और 15H फॉर्म देते हैं। 15G आप देते हैं फॉर विड्रॉल फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, यू गिव इट फॉर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम, ये देते थे। ये तब देते थे 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, टैक्स ऑन टोटल इनकम इज निल एंड इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब रेंट के लिए भी 15G या 15H आप दे सकेंगे। फॉर रेंट यू कैन गिव 15G, 15H provided those 2 conditions are satisfied in case of a person less than 60 and 1 condition is satisfied in the case of a senior citizen. वो कंडीशन सेटिस्फाई करिए, 197A में 15G दे सकेंगे फॉर दिस ऑल्सो। सो दिस इज द एडिशनल benefit given to those who had only rental income and they never had any other income, और उनका TDS करता था, बेचारों को रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, उसके लिए किया। ये 197A आया। चलिए सर आगे करते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। अभी तक एडवांस टैक्स हम देते थे कंपनी के केस में 4 इंस्टॉलमेंट्स और अपने केसेस में 3 इंस्टॉलमेंट, 30, 30, 40। पता नहीं यूनिफॉर्मिटी करी है कि पैसे नहीं है। नाउ एवरीवन विल हैव टू पे एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, एग्जैक्टली लाइक कंपनी। जैसे कंपनी देती है वैसे ही देना। और 234C का इंटरेस्ट वही पड़ेगा जैसे कंपनी को पड़ता था, उसमें भी वही डाल दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इफ इट इज लेस देन 15 बट 12% भी दे देंगे तो नो 34C। सेकेंड 36% भी कर देंगे जैसे कंपनी में था, नो है। लेकिन ये अब 4 इंस्टॉलमेंट में सबको एडवांस टैक्स देना है, जून, सितंबर। लेकिन एक चीज वो है, दोज हु आर कवर्ड अंडर 44AD, they were not required to pay advance tax earlier. Now they will be required to pay advance tax in 1 installment, and that installment will be 15th March. 15 मार्च को वो देंगे 44AD। गलत है क्योंकि एक छोड़ दिया आपने। What about 44ADA? ADA वाले को क्या करेंगे? क्या उनको 4 इंस्टॉलमेंट में देना कि उनको भी 1 इंस्टॉलमेंट? तो ये गलती रह गई है। They will include 44AD also in 1 installment. Let us wait and watch, because otherwise they will be giving in 4 installment. जब AD वालों को 1 कर दी तो AD वाले को भी करनी पड़ेगी प्रेजेंटिव इनकम की। So that mistake will be rectified. Wait and watch. We will put it that. So ये है एडवांस टैक्स की बात। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज आई। सर मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं 18 दिसंबर को, और 18 दिसंबर से 31 मार्च तक मेरा प्रॉफिट काफ़ी हो गया, और मुझे टैक्स देना था तो एडवांस टैक्स देना है। तो ईओ कहता था 15 सितंबर को क्यों नहीं जमा कराया? अबे मेरे को पता ही नहीं, मैंने बिजनेस शुरू करना है।
15 दिसंबर को क्यों नहीं जमा कराया? कि लॉ तो यही है कि 3 इंस्टॉलमेंट में कराना है, तो वेयर इज द 3 इंस्टॉलमेंट? कैपिटल गेन के लिए तो है सिस्टम दैट इफ यू अर्न कैपिटल गेन इन लेटर ईयर देन इंस्टॉलमेंट विल बी डन आफ्टर दैट डेट। लेकिन नया बिजनेस है, मैं क्या करूं? मेरा सीए का एग्जाम हुआ, मई में एग्जाम हुआ, मैं पास किया, जुलाई में बिजनेस प्रोफेशन शुरू किया, वो कहेगा 15 जून का क्यों नहीं जमा कराया था तुमने? बात समझ ले क्या है? मुझे क्या पता मैं सीए में पास होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा? हाँ, तो ये भी डर लगा रहता है। बट द पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस यू डोंट नो वेदर यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। अब जनवरी में शुरू कर रहे हो तो कह रहे सितंबर की इंस्टॉलमेंट नहीं कराई, सितंबर की इंस्टॉलमेंट नहीं कराई, ये कैसे हो सकता है? डाल दिया। Now if you start a new business or profession, then installment or advance tax will have to be paid thereafter, not before it, thereafter. ये एक समझदार चीज करी जो आपको बताई मैंने, ये it's a good thing which should have been done. आइए जरा अब ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफंड, रिफंड पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम। लेकिन जरा रिफंड की बात को जरा ध्यान से सुनना। लॉ चेंज क्या किया है? रिफंड कैन बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। One reason is because of excess deposit of advance tax and TDS. This is one reason. Another reason for refund can be self-assessment tax excess paid. There are 2 reasons. एडवांस टैक्स और टीडीएस ज्यादा हो गया इसलिए हो गया, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, तो उन्होंने दोनों को अलग अलग किया। इफ द रिफंड इज ड्यू टू excess deposit of advance tax and TDS, then if you file the return on or before the due date of furnishing the return, then refund is 6%, but it will be calculated. The period will be from 1st April of the relevant assessment year till the date of the refund. ऐसे ही मिलता है, 1 अप्रैल से मिलता है, till the date of the refund. लेकिन रुकिए, अगर आपने रिटर्न लेट भेजी तो रिफंड विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न and not from the date of 1st April. Suppose date थी 30th September, आपने डाल दी तो पहली से मिल जाएगा। Suppose डेट आपने डाली नवंबर में, तो 8 महीने का इंटरेस्ट गया, क्योंकि now it will be from November and not from April. So if the return is filed late, you will be losing 6% interest of that refund. And please note that अगर आप सितंबर तक डाल देते तो पूरे 6 महीने का मिल जाता, लेकिन क्योंकि आपने सितंबर का 1 दिन भी डिले किया, वो पूरा का पूरा गया। तो एम्फेसिस इज ऑन फाइलिंग ए रिटर्न ड्यू डेट। तो प्लीज ये देख लेना, कहीं ज्यादा अमाउंट ऑफ रिफंड हो तो यू आर लूजिंग 6% फॉर दोज मैनी मंथ्स फॉर विच रिटर्न इज फाइल्ड फ्रॉम अप्रैल टू द डेट ऑफ फाइलिंग। ये गया अप्रैल टू डेट ऑफ फाइलिंग। क्लियर हुआ सर? नेक्स्ट पॉइंट 140A का था, आपने एक्सेस जमा करा दिया, कहते करा दिया, रिफंड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ 140A और डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न विच एवर इज लेटर। क्या करते थे? जमा करा के बैठ जाते थे, रिटर्न नहीं फाइल करते थे। लेकिन वो कहता नो, रिफंड तब मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल कर दें। सो ये भी एक चेंज आया है, लेकिन एक बड़ा अच्छा चेंज ये आया, एक सेक्शन 153 सब सेक्शन 5 डाला, उसको मैं 244A से कंपेयर करूंगा। जरा सुनिए क्या है। आप अपील में गए, अपील का ऑर्डर हुआ अंडर सेक्शन 250, यू वेंट टू ITAT, ऑर्डर हुआ अंडर 254, यू वेंट टू हाई कोर्ट, ऑर्डर हुआ अंडर 260A, यू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर हुआ अंडर 262, या रिवीजन का ऑर्डर हुआ अंडर 263 एंड 264, ये ऑर्डर हुआ। टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑर्डर AO के पास जाना पड़ता है, और उस इफेक्ट दे देता तो रिफंड बनता था मेरा। अब क्या करता था AO? उसका इफेक्ट ही नहीं देता था, क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं थी। यू कुड कंटिन्यू विद दैट, वो सो जाते थे, कर लेंगे, क्या जल्दी है, कर लेंगे। अब लॉ ने क्या कहा है कि दिस अपील इफेक्ट विल हैव टू बी गिवन बाय द AO विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ही रिसीव्ड दैट ऑर्डर। 3 महीने के अंदर उसको अपील का इफेक्ट देना पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी है। अगर आप 3 महीने में नहीं करेंगे देन यू विल हैव टू गो टू द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए डेट विच विल बी मैक्सिमम 6 months। वो रीजन बताने पड़ेंगे क्यों मांग रहे हैं। ये 153(5) में कर दिया है कि अब अपील इफेक्ट देना पड़ेगा। इसी को लेकर 244A चेंज कर दिया कि अपील इफेक्ट क्योंकि 3 महीने में देना है, और उस 3 महीने के इफेक्ट के बाद अगर 3 महीनों में आप रिफंड नहीं पे करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
9% हो जाएगा, 6% नहीं होगा। मतलब 3 months वो लगेंगे और 3 months के अंदर अंदर आ गया तो 6%, और 3 महीने उसके बाद आया तो देन दे विल हैव टू पे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी उस एओ की कि तूने कैसे नहीं दिया, क्यों गवर्नमेंट का लॉस किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एक कॉन्सेप्ट नया डाला जो बहुत अच्छा डाला और काम का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। अगला पॉइंट, बहुत अच्छी चीज करी है सेक्शन 271 की। आप पेनल्टी तो पता ही है आपको, 2 पेनल्टी है, 271 1B, 271 1C। 1B की पेनल्टी थी, you don't respond to a notice given under 142(1), you don't respond to a notice given under 143(2), you don't find a response notice under given under 142(2)(A। आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। ये पेनल्टी तो अभी भी है, लेकिन क्योंकि 271 सेक्शन को अबॉलिश कर दिया है, दिस पेनल्टी हैव बीन शिफ्टेड टू सेक्शन 272A सबसेक्शन 1, उठाकर वहां डाल दी। अब 271(1)C की पेनल्टी क्या थी? कंसीलमेंट ऑफ इनकम or furnishing inaccurate particulars of income. The penalty was 100% the tax ought to be evaded, maximum 300% the tax ought। वो कहते थे ये डिस्क्रिशन यूज होता है, ये कहता है मैं 300 लगाऊंगा, आप कहते हैं 100 लगा ले। समझ में आया? ये डिस्क्रिशन खत्म कर दिया, ये सेक्शन ही खत्म कर दिया। अब एक सेक्शन डाला 270A, और इसमें 2 कॉन्सेप्ट डाले, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ एन इनकम। कॉन्सेप्ट को समझिए, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एन इनकम और मिस रिपोर्टिंग ऑफ एन इनकम। अगर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो पेनल्टी 50% होगी, 50% फिक्स्ड, ना ज्यादा ना कम। अगर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो पेनल्टी 200% होगी, 200%। सेक्शन में डाला 270A, the assessing officer, commissioner appeal, or the principal commissioner or commissioner may direct the assessee to a penalty in the following cases. कैसे? अब अंडर रिपोर्टिंग कहां होगी? If there is a under reporting, what is the concept of under reporting? There is a assessment under 143(3) which is more than the 143(1). मतलब जो प्रोसेसिंग हुई उससे ज्यादा हो गई। प्रोसेसिंग हुई 20 लाख की, लेकिन 143 हो गया 25 लाख का। तो व्हाट इज द अंडर रिपोर्टिंग? 5 लाख, बिकॉज प्रोसेसिंग इज 143(1) इज लेस, समरी असेसमेंट इज लेस, वो ज्यादा हो गया। आपने रिटर्न ही नहीं भरी थी, फिर भी असेसमेंट हो गई। कौन से सेक्शन में होगी? 144 में या 147 में। रिटर्न नहीं भरी थी, असेसमेंट हो गई, तो पता है क्या मानी जाएगी? अंडर रिपोर्टिंग। जो असेसमेंट हुई माइनस द एग्जेम्पशन लिमिट, माइनस द एग्जेम्पशन। सपोज आपकी असेसमेंट कर दी 15 लाख की, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख, तो 12.5 लाख ये माना जाएगा अंडर रिपोर्टिंग। इसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। अगर आप कंपनी है तो सारा ही है, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं। कंपनी में तो एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं, तो पूरी की पूरी अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी अगर आपने रिटर्न नहीं भरी हुई है और असेसमेंट हुई। दूसरा, आपकी रीअसेसमेंट हुई है और दैट इज मोर देन व्हाट वाज अर्लियर असेस्ड और अर्लियर रीअसेस्ड, वो डिफरेंस भी अनरिपोर्टेड माना जाएगा। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? और चौथा, यू आर इंकरिंग ए लॉस, दैट लॉस हैज बीन रिड्यूस्ड और इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, वो भी माना जाएगा। और इस पे टैक्स जो लगेगा 30% लगेगा, स्लैब रेट नहीं लगेगा, और पेनल्टी लगेगी 50%। एक एग्जांपल दे रखी है, उसकी मैं समझाता हूं। सपोज यू हैव सोन 110 लाख, 110 आपने रिटर्न भरी, सपोज 100 की रिटर्न भरी, 100 लाख। समरी असेसमेंट 110 की हो गई 143(1), 143 150 का हुआ, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 150 माइनस 110, 40 पे 30% टैक्स दो और बाकी 50% पेनल्टी दो, ठीक है जी। और उसके बाद रीअसेसमेंट हो गई 180 की, तो 180 माइनस 150, पीछा 150 हुआ है, उस 30 पे 50 वो दो, 30% टैक्स एंड 50% पेनल्टी दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? दूसरा, आपने रिटर्न ही नहीं भरी, यू डिडंट फाइल रिटर्न, और उसने असेस कर दी इनकम 18 लाख, ठीक है। 18 लाख माइनस 250 अगर आप इंडिविजुअल है, 1550 का 30% टैक्स दो और 50% पेनल्टी लगेगी। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है
कि भाई 50% पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग कैसे देखना है, 143(1), 143(3) डिफरेंस, नो रिटर्न, assessed income minus 250 या whatever is your limit, reassessed income minus already assessed, the difference unreporting, loss, पहले लॉस था आपने क्लेम किया 20, रिड्यूस होके 12 कर दिया, 8 लाख आपके उसके ऊपर 30% दीजिए और पेनल्टी दीजिए। ये वही चीजें पहले भी थी, वो चीजें यहां भी डाल। अब मिस रिपोर्टिंग की 200% मिस रिपोर्टिंग के उन्होंने दे दिए, कौन कौन सी मिस रिपोर्टिंग होगी। Misreporting will be misrepresentation or suppression of facts. This is misreporting. Any investment not recorded in the books, misreporting. Any expenditure debited which cannot be substantiated. Any false entry in the books of account. Any receipt which has not been recorded in the books of account. And the last is, वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी। इन ऑल दीज केसेस इट विल बी कॉल्ड एज मिस रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग। एंड जब मिस रिपोर्टिंग होगी तो पेनल्टी विल बी 200%। क्लियर हुआ सर? मिस रिपोर्टिंग 200%, अंडर रिपोर्टिंग 50%। क्लियर? कैन आई प्रोसीड? बट टैक्स लाइबिलिटी नॉट द स्लैब रेट, टैक्स लाइबिलिटी विल बी 30%। अब एक सेक्शन और डाल दिया है, घबराने की वजह से उन्होंने कहा लो एक 270AA डाल देते हैं। देयर इज एन असेसमेंट अंडर 143(3) और 4 और 147 असेसमेंट हो गई। प्लीज डोंट गो फॉर ए अपील, आप अपील मत करिए। यू पेड द टैक्स प्लस द इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ असेसमेंट एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द AO. The AO shall give you immunity of the penalty as well as prosecution. क्या कर रहे हैं? आपकी असेसमेंट 143(3) में हुई है या 147 में हो गई, असेस्ड इनकम आ गई, आप डिस्प्यूट मत रेज कीजिए, डोंट गो फॉर अपील, गिव ए लेटर, give application to the AO that I don't want to go for an appeal, I would like to deposit the tax as well as the interest till the date of assessment, kindly give me immunity from penalty and prosecution. अगर आपकी फैक्ट है तो she shall, लेकिन आपको लगता है वो मिस रिपोर्टिंग है या वो है, तो फिर वो he will give you time of hearing और रिजेक्ट भी कर सकता है। ये सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग के लिए 270AA है, इट इज नॉट फॉर मिस रिपोर्टिंग। तो ये अब डिस्प्यूट काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगे, छोटी मोटी एडजस्टमेंट हुई, उन्होंने कहा यार टैक्स दो और इंटरेस्ट दो, जान छुड़ाओ, पेनल्टी के लिए कौन जाएगा और उसके लिए कौन जाएगा। ये एक नया सेक्शन 270AA डाला है और ये अच्छा सेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई रेजोल्यूशन जरूर होएंगे, कई ज़्यादा होगा तो मिसयूज होगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। द वर्ड इज शेल। अब 270AA के बाद तो एक छोटी सी चेंज करी है, 270 जो 71AAB होता था सर्च के केस में, उसमें लिखा था इफ यू सरेंडर पे पेनल्टी 10% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इफ यू डोंट पे पेनल्टी और देन इफ यू फाइल दैट इनकम अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द रिटर्न, पेनल्टी वाज 20%, बट अगर सरेंडर कर दो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रच, पेनल्टी वाज ओनली 10%, एंड इफ यू डू नॉट डू दैट, असेसमेंट में हुआ तो पेनल्टी वाज 30% ऑफ द इनकम, मैक्सिमम 90% ऑफ द इनकम। इसको मर्ज कर 60% कर दिया, पेनल्टी 60% हो। बाकी पेनल्टी के कुछ और प्रोविजन है सर, वो कर देंगे। अब हम आते हैं VDIS, जो लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जो 2 निकाली हैं। पहले वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, दैट इज नॉट इन इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल। चैप्टर 3 चैप्टर डाले हैं फाइनेंस बिल में इस बार, एक का नाम है चैप्टर 8, एक का नाम है चैप्टर 9 और एक का नाम है चैप्टर 10। जैसे सर्विस टैक्स इनका आज तक चैप्टरों से ही चला आ रहा है, चैप्टर V और VA है जी। अब डाला होगा इस बार, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का डाला ना, वो मानते हो, वो तो अभी डाला है। पहले 94 में तो 2 ही हैं, V और VA, अब ये नया डाला है, इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। चैप्टर 8 का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है अभी बताता हूं। चैप्टर 9 का नाम है
इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 एंड चैप्टर 10 का नाम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016। ये 3 चैप्टर डाले, नॉट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स बट पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल। इस चैप्टर के क्या नाम है, जरा ध्यान से सुनो। ये इक्विलेशन लेवी क्या चीज है? सर हो क्या रहा है, डिजिटल इकोनॉमी हो गई है, ई कॉमर्स हो गया है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर सकी कंट्रीज कि उसको टैक्स कैसे करना है, विच कंट्री विल टैक्स दैट। अब फेसबुक है, गूगल्स है, लिंक्डइन है, और उस पर आप एडवर्टाइजमेंट देते हो। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्या इंडिया में टैक्स होना चाहिए उस नॉन रेजिडेंट को? क्योंकि वो तो नॉन रेजिडेंट है, और पेमेंट कौन करने वाला है? पेमेंट करने वाला मैं। तो क्या उसका टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या उसको रॉयल्टी मानेंगे कि क्या मानेंगे? अगर तो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो उसमें टैक्स नहीं आ रहा था। यही कंफ्यूज था कि ये जो डिजिटल सर्विसेज दी जाती हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट डिजिटल का है, इसका टैक्स कौन लेगा? अभी तक कंट्री ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक कंट्री ने एक नया सिस्टम निकाल दिया जिसका नाम रखा है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी, नॉट इनकम टैक्स, सेपरेट। कि अगर एक नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है एक रेजिडेंट से पेमेंट ले रहा है, या एक नॉन रेजिडेंट से ले रहा है जो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, कौन ले रहा है? नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। गूगल डज नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया, फेसबुक डज नॉट हैव ए, उस पर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। ये जो पेमेंट अगर 1 लाख से ऊपर है तो उस पर 6% टैक्स देना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट को ऑफ द ग्रॉस रिसीट। 6% टैक्स किसको देना पड़ेगा? उस नॉन रेजिडेंट को। अगर 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से कम है तो नहीं। अभी तक ये एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है, ग्रेजुअली और डिजिटल सर्विसेज के लिए भी करने जा रहे हैं। इट इज नॉट एन इनकम टैक्स, इट इज नॉट एन इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स होता तो डबल टैक्सेशन रिलीफ की बात होती। ये 6% वहां रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इनकम टैक्स है ही नहीं। इसका नाम रखा है इक्वलाइजेशन लेवी। हमें 6% दो, आप जो मर्जी करो। फिलिप वाले को कहा उस, अब क्योंकि वो बाहर बैठा है तो कैसे होगा? तो टीडीएस के प्रोविजन डाले, लेकिन टीडीएस के प्रोविजन यहां नहीं है। उसी इक्वलाइजेशन लेवी में है कि पर्सन हु इज मेकिंग एन पेमेंट विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 6% of the payment made provided the payment exceeds 1 lakh। 1 लाख से कम है तो कुछ नहीं हो, 1 लाख से ऊपर है तो 6% काट। अगर आपके अपनी जेब से देना है तो फिर 6% को ग्रॉस अप कर लीजिए। वो तो ग्रॉस अप करते ही है तो वो कर ले, और टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाएगा। और फिर कैसे जमा कराना है? 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज डिडक्टेड। वो सेम चीज है, लेकिन एक बड़ी चीज कर दी। वो लेवी वहां पर है, लेकिन सेक्शन 40 में क्लॉज आई भी डाल दी। सेक्शन 40 वो डिसअलाउंस वाला, जैसे वो हमारा वो टीडीएस नहीं काटते तो डिसअलाउंस करते हैं, कि अगर ये नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दे रहे हैं और वो इक्वलाइजेशन लेवी आपने नहीं डिडक्ट की और जमा नहीं कराई तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं मिलेगा। यहां इनकम टैक्स ले आए, बाकी चीजें इक्वलाइजेशन लेवी में चली गई। तो सर अब गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिला करेगा फ्लैट 6%, नो डिडक्शन, नथिंग, ग्रॉस पेमेंट का 6% रेवेन्यू मिलेगा जिसका नाम रखा है इक्वलाइजेशन लेवी। और इसका कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनकम टैक्स के अंदर आ ही नहीं रहा है। क्लियर हो गया सर? इक्वलाइजेशन लेवी। चीजें बड़ी टेक्निकल होती हैं, लेकिन समझो तो मुश्किल नहीं है। एक बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करता है ना, बात तो ये है। हमें तो मजबूरी है, करना पड़ता है, नहीं तो कौन पढ़ेगा? सर आज 3 दिन हो गए हैं, पहले दिन बजट आया था, आप भी थे, 29 तारीख को इंस्टीट्यूट में 9 बजे तक बैठे थे, कोई वेबकास्ट हुआ था, रात को घर गए, सिर्फ 1 घंटा सोया था, ओनली 1 आवर, और सवेरे 10 बजे लेक्चर था, और कल 9 लेक्चर थे, रात को 12:15 में लेक्चर खत्म किए। मैं वो नहीं कह रहा, दिक्कत क्या है? दिक्कत आन की है कि मैं तो गो ग्रीन हूं, मेरे पास पेपर नहीं होना चाहिए, इसलिए पढ़ना पड़ता है। पेपर होगा तो फिर तो पढ़ पढ़ के बता देंगे, अब पेपर नहीं है, और यही आते बत्रा जी ने भी डाल ली है, इसलिए इनको भी मुसीबत हो गई। पहले हम पेपर रखा करते थे, अब हमने कहा गो ग्रीन, पेपरलेस इकोनॉमी, पेपरलेस काम करेंगे। और पेपरलेस करने के लिए आपको
और एक एक चीज आप पूछते हैं, लेकिन उससे फायदा है हमें। दिस इज नॉट इन योर इंटरेस्ट, इट इज इन आवर इंटरेस्ट। एक बार जो कर दिया और इतने लेक्चर कर दिए, फिर जब मर्जी पूछ लेना, याद ही रहेगा। सोते सोते भी इनकम टैक्स याद आता है, और आता क्या है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये एक इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है सर। वो कह रहे बीवी भी एक्सपर्ट हो गई होगी आपकी। सर वहां तो सुननी पड़ती है, सुना कहां सकते हैं वहां। क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये सुना सकते होंगे, मेरी तो हिम्मत है नहीं। तो चलिए सर, क्योंकि कल बहुत ज्यादा डांट पड़ी। रात को 1 बजे घर पहुंचा, 1:15 बजे, तो डांट पड़नी थी, क्योंकि सवेरे 6 बजे फ्लाइट पकड़नी थी। तो डांट तो पड़नी थी। तो हमें भी आदत पड़ चुकी है, कल भी ऐसे ही है। मैंने कहा हमें तो आदत पड़ चुकी है, हम भी ढीठ हैं और वो भी ढीठ है। चलिए सर, अगला पॉइंट सर, VDIS. Subject to the provision of this scheme, every person can make a declaration of any income. Declaration of any income. Which has, if he has filed a return, he has not disclosed that income in that return. Or he has failed to file a return of income. Or there is a escaping of assessment in the return filed by him. तो आप डिक्लेयर कर दीजिए वो इनकम को पिछले सालों की, जो 1 मार्च 2016 से पीछे की है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज करोगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस स्कीम। उसकी पुरानी वैल्यू नहीं लेनी। चिदंबरम साहब इसलिए तो मर गए थे, पुरानी वैल्यू दे देते। उनको ये नहीं पता कि यहाँ कौन कौन से एक्सपर्ट बैठे हैं कि क्या करना है, कुछ मिला ही नहीं उनको। यही तो बात करी। आज की वैल्यू उसकी, अगर बिल्डिंग आपकी 10 साल पुरानी है या 6 साल पुरानी है, वैल्यू आज की। शेयर्स है, वैल्यू आज की। ज्वेलरी है तो वैल्यू आज की। मनी है तो मनी तो है ही, डिपॉजिट है तो बड़ी। ये पैसा आप डिक्लेयर कर दीजिए, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि कहां से आया। नो वेल्थ टैक्स लाइबिलिटी कि वेल्थ टैक्स में क्यों नहीं दिखाया, कुछ नहीं होगा। दिस विल नॉट बी प्रोड्यूस एज एविडेंस अंडर अदर लॉज, नहीं होगा। आप डिक्लेयर करिए, लिमिटेड टाइम विंडो आएगी, 1 जून के बाद टाइम दिया जाएगा। विद इन दैट पीरियड यू हैव टू फाइल ए डिक्लेरेशन, जैसे ब्लैक मनी की करी थी। वो फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप बता दीजिए। हम आपका सोर्स नहीं पूछेंगे, हम आपका असेसमेंट ईयर नहीं पूछेंगे कब का है। जस्ट शो दिस इज द मनी, दिस इज द बैंक अकाउंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, और वैल्यू टू बी प्रिस्क्राइब्ड। वैल्यू कैसे लेनी है वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि वैल्यूअर करेगा कि आप करवाएंगे। वैल्यूएशन विल बी डन एज पर द रूल्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। रिटर्न भर दीजिए और विद इन द टाइम अलाउड उसका टैक्स दे दीजिए। कितना? 30% टैक्स दीजिए, इनकम टैक्स। इसको नाम इनकम टैक्स जरूर है, लेकिन चैप्टर सेपरेट है। और 25% ऑफ द टैक्स कृषि कल्याण सेस दे दीजिए। ये जान के डाला ताकि कृषि वालों को खुश करके कह दें VDIS करा तो आपको फायदा भी दे दिया। और 25% द टैक्स पेनल्टी दे दीजिए। मीन्स 25% 30, 7.5। सो 30 + 7.5 + 7.5, 45% दीजिए। यू आर आउट ऑफ द इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स में ऐड नहीं किया जाएगा। यू आर आउट ऑफ द वेल्थ टैक्स। ये आप जमा कर, ये आएगी आपकी वेल्थ, आपकी इनकम वाइट हो गई। चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एसेट है या इन द फॉर्म ऑफ मनी है या बैंक डिपॉजिट है, ये वाइट हो जाएगी। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो यही अमाउंट जिसकी डिक्लेरेशन दी थी आपकी इनकम टैक्स में ले लिया जाएगा। फिर तो आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, 20%, 200% पेनल्टी पड़ेगी, मिस रिपोर्टिंग एंड ऑल। ये इनकम टैक्स में ले लिया जाएगा। लेकिन रुकिए, इफ यू हैव बीन इशूड ए नोटिस अंडर 142(1), under 143(2), under 148, under 153(a), under 153(c), or if a search has been conducted under 132, or requisition books under 132(a), या सर्वे अंडर 133(a) है, तो फिर आप इसको VDS में जा ही नहीं सकते। सबसे गंदा काम यही किया है। हमने यही सजेस्ट करना है
कि अगर जा रहा है लेके खत्म करो, डिस्प्यूट खत्म करो, 143 आया तो क्या आया, नोटिस आ गया तो क्या आया, वहां पेनल्टी लोगे 50% की, सोचोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, या लेके खत्म करो। वो कहते हैं वहां इंटरेस्ट भी मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलना है, यहाँ तो करंट इनकम के लिए इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर ही तो 45%। सो वी विल बी ट्राइंग कि इससे फेल इसलिए हो जाएगा, जो असेसमेंट आपकी पेंडिंग चल रही है उसके लिए तो आप जा ही नहीं सकते, वो तो जो है अलग है तो जा ही सकते। मैं तो उनको ये पूछा, सर आप ये करा क्या है ये VDS, मेरे पास एक प्रॉपर्टी 7 साल पुरानी है, मेरा क्या कर लोगे अगर वो वेल्थ टैक्स में कवर्ड नहीं है तो? मेरे पास शेयर्स हैं 8 साल पुराने, मेरा क्या कर लोगे अगर वो वेल्थ टैक्स में कवर्ड, वेल्थ टैक्स में है ही नहीं, इनकम वेल्थ टैक्स में है ही नहीं, और डिविडेंड वैसे ही एग्जेम्प्ट है उसका। मुझे बताओ मेरा कर क्या लोगे अगर मैंने बेचे नहीं हुए तो? अगर बेचे तो कैपिटल गेन हो सकता है। इफ यू हैव नॉट सोल्ड आई विल कीप इट ऑन द टेबल एंड डू व्हाटएवर यू लाइक, बिकॉज 7 साल के ऊपर का केस कोई, ये फॉरेन एसेट नहीं है जहां 16 साल है, ये तो इंडियन है, तो इसके लिए तो 6 साल ही तो है, 6 + 1 7 ईयर। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो कोई करेगा ही नहीं, जो करेंट ईयर का होगा तो करेगा, पुराने की जरूरत क्या है मुझे करने की? हाँ ज्वेलरी है, आई कैन नॉट बी आइडेंटिफाई कि विच ईयर की है, कैश है, आई कांट आइडेंटिफाई, बट इफ देयर इज अ बिल्डिंग आई कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कवर्ड अंडर वेल्थ टैक्स। अगर वेल्थ टैक्स में कवर्ड है तो दिक्कत आ सकती है कि आपने वेल्थ टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी थी, उसकी पेनल्टी भी लग सकती है, उसका इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। बट अगर एक प्रॉपर्टी है माफ है और वही मेरे पास है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? या एक 500 गज का प्लॉट माफ है, अगर वही मेरे पास है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने कहा शेयर्स हैं वेल्थ टैक्स में आते ही नहीं है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? 6 आइटम वेल्थ टैक्स में आती है, अगर अदर देन 6 आइटम मैं डिस्क्लेयर करता हूं तो मेरा क्या कर लोगे? बात समझ में आ रही है? लेकिन वो 7 साल पुरानी होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश दैट इज मोर देन 7 year old, because you can open case for the 6 assessment year right from the end, वही जो escaping of assessment का। तो let's see कि इनको ये थोड़ा सा VDS में थोड़ा सा ये डाल दिया, but I think 45% is a reasonable amount and it should be welcome thing, provided ये थोड़ी बहुत irritated point हटा दे। So this is the question of VDIS, last issue। बाकी हो सकता है मैंने 2-4 सेक्शन छोड़ दिए हो, आप पूछना चाहते तो पूछ लेना। और वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016। आपका केस पेंडिंग है कमिश्नर अपील तक, बस उससे आगे नहीं जाना, उससे आगे नहीं, कमिश्नर अपील तक आप अपील विड्रॉ कर लीजिए, वो डीम्ड विड्रॉल हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड विड्रॉल। आप कहिए आई एम रेडी टू पे टैक्स एंड द इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंटरेस्ट, नो पेनल्टी इफ द अमाउंट इन्वॉल्व डज नॉट एक्सीड 10 लाख, पेनल्टी नहीं लगे। बट इफ द अमाउंट इन्वॉल्व डिस्प्यूटेड टैक्स एक्सीड्स 10 लाख देन पेनल्टी भी देनी पड़ेगी 25%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे दीजिए, द असेसमेंट इज डन, नो अपील रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। बट रुकिए, ये टैक्स एरियर की बात कर रहा है, एक और टैक्स भी है स्पेसिफाइड टैक्स, वोडाफोन, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी पार हो चुका है, तो उसका क्या करेंगे? वो कैन की जजमेंट आई है, उसका क्या करेंगे? उसका नाम रखा है स्पेसिफाइड टैक्स, कि इवन इफ इट इज गन, रिट फाइल हो गई, ये अपील हो चुकी है, सब भी हो गया, फिर भी आइए टैक्स दीजिए और जान छुड़ा लीजिए। ये वोडाफोन के लिए किया, ये उनको के लिए किया जो बड़े बड़े डिस्प्यूटेड है, जो हार चुके हैं, जिसकी पर ये स्पेसिफाइड टैक्स तब की बात होगी जब कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई होगी, उसकी वजह से टैक्स आया, वो स्पेसिफाइड टैक्स में जाएगा। वोडाफोन का रेट्रोस्पेक्टिव है, अगर लॉ ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की हुई है तो फिर टैक्स एरियर की बात नहीं होगी, उसका नाम होगा स्पेसिफाइड टैक्स, और उसके लिए अपील कहां पेंडिंग है या जजमेंट हो भी चुकी है तो भी कुछ नहीं हो। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस, one is called tax area, the another is called specified tax। tax area तो वो है जो जनरल है, आप है और मैं, और specified tax वो है जो ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपकी टैक्स डिमांड खड़ी हो गई। किसकी टैक्स डिमांड खड़ी हुई? वोडाफोन की। वोडाफोन तो जीत गया था केस सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन क्या चेंज किया? विद रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट 1962 आपने कह दिया ये प्रोविजन है, और उसकी टैक्स लायबिलिटी हो गई। कहता वो जा सकता है इवन इफ
द केस हैज बीन क्लियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और वेरी गुड, आइए फैसला करिए, 25% पेनल्टी दीजिए, 100% टैक्स दीजिए, साथ में इंटरेस्ट दीजिए, थैंक यू वेरी मच। अब वोडाफोन आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, ये कैन वाला आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर फंसे हुए हैं। दो चीजें हैं इसमें, पता नहीं ये साइज वगैरह कस्टम में नहीं होगा, ये इनकम टैक्स में क्यों किया गया। द केसेस आर देयर आर टू थिंग, टैक्स एरियर, स्पेसिफाइड टैक्स, टैक्स एरियर नॉर्मल, स्पेसिफाइड टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव। हम ये दीजिए, हम आपकी कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर देंगे, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये परमानेंट नहीं है, लिमिटेड पीरियड बताएंगे टू बी स्पेसिफाइड, उस पीरियड में आप कर देंगे और ये चीजें दे देंगे तो हमारा टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्व कर देंगे। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा जो बाहर की कंपनियों का रेट्रोस्पेक्टिव वाला है, अगर वो मान जाएं तो काफी कुछ डिलीट हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये है सर मेरे हिसाब से जो मेजर चीजें थी मैंने आपको बता दी। ये चैप्टर 10 था जो लास्ट बोला। अभी भी कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है, जल्दी जल्दी में मैं छोड़ गया हूं, यू कैन आस्क मी, आई कैन गिव यू दैट आंसर। और कोई और क्वेरी है तो दे। हाँ जी बोलिए। हैं जी सर, स्टे ऑफ डिमांड मैं सारा दिन रात को पढ़ता रहा, वो है ही कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आ गया है 29 फरवरी को ही नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 15% दो तो स्टे है। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आया, किस में आया? नोटिफिकेशन देखिए, उस नोटिफिकेशन में आ गया। अभी तक आपने 14A भी सुना होगा, 14A कह रहे थे डिविडेंड का, 14A का क्या होगा, 14A भी अभी एक्ट में नहीं है। आपने ये भी सुना होगा अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर 2 साल का पीरियड है, मंत्री जी ने बोला सेक्शन में तो अभी आया नहीं, आ जाएगा। ये दो चीजें कोई आफ्टर थॉट भी होती है। सुनना चाहते हैं? आइए सुनिए। एक चैप्टर डाला, एक सेक्शन डाला 115 JD क्या ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी आप फॉर्म चेंज कर देते हैं। क्यों फॉर्म चेंज हुई? कि आपकी कैंसिलेशन कर दी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, और आपने ऑब्जेक्ट चेंज किए और आपने दोबारा 12A मांगा और 12A नहीं दिया, या आपने ये अपना चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे को दे दिया अदर देन जो सेम बिजनेस का है वो, या आपने डिसॉल्व किया था और डिसॉल्व करके उसकी एसेट दूसरों को नहीं दी। आप समझ रहे मैंने क्या 3 इश्यूज बताए हैं। एक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट for which fresh application you did not make, or you made but you were not given the registration। ये फॉर्म चेंज हो गई, या कमर्शलाइजेशन कर दिया, चैरिटी से हटा दिया। 2 डोनेटेड द चैरिटेबल ट्रस्ट, मर्जर नहीं होता, मर्जर कहाँ होता है, पैसे ले लेते हैं कच्चे में, आपको पता ही है। जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे भी आपने मर्जर कर दिया दूसरे ट्रस्ट में, अगर तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट का है तो कुछ नहीं होगा, अदर देन ऑब्जेक्ट का है तो ये भी आ गया। तीसरा डिसॉल्व कर दिया चैरिटेबल ट्रस्ट। जब डिसॉल्व करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, या तो सारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दो, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। आपने नहीं किया। इस केस में हम आपको 30% टैक्स लगाएंगे ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो उसका एक्यूमुलेटेड फंड्स पड़े हैं उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, और आप उसके ऊपर 30% टैक्स देंगे। मैं इनकम के ऊपर नहीं कह रहा, इनकम जो देनी है वो देनी है, जो एक्यूमुलेटेड फंड्स है उसकी वैल्यू निकालकर उसके ऊपर 30% टैक्स आपका लग जाएगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट जो उन्होंने निकाला है। और पूछिए सर, क्यों पूछना? 44AD में जो चेंज आया, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज 44AD। कोई बात नहीं, 44AD में चेंज आया तो 44AB में कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आया। एक तो लग रहा है कि वो गलती रह गई, एक ये भी लग रहा है कि इंटेंशनली किया है, क्योंकि जो 80JJAA वाला है वहां पर 1 करोड़ वाला आ जाएगा। 80JJ में लिखा ना टू टैक्स ऑडिट, तो उसलिए हो सकता है कि इंटेंशनल किया, हो सकता है कि गलती रह गई। ये तो अब इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम डिस्कशन करेंगे। 80JJ में लिखा हुई कवर्ड अंडर 44AB, 2 करोड़ वाला हो गया तो 2 करोड़ हट जाएगा ना, फिर तो नीचे आ जाएंगे, या वो तो इसलिए वो कहते हैं 1 करोड़ वाला ही रहे। इंटेंशन भी हो सकता है, बट लेट अस सी एंड वॉच कि वो क्यों नहीं किया। हाँ जी, इससे क्या लेना देना? आप ना कह रहे हैं कि पिछले साल का,
जब आपको टीडीएस की लिमिट किस पर्पस के लिए लेनी है? टीडीएस काटने के लिए? आपकी क्वेश्चन है, नहीं वो तो हमेशा पूछते हैं, हमारा मित्रता है उनसे। एंड ही आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई एम टेलिंग यू। और हर बार मैं यही कहता हूं, किताबें नीचे पड़ी होंगी, छोड़ेंगे नहीं मुझे जब तक कि मैं उसका जवाब नहीं दे दूं। और पता है, टेस्ट तो करते हैं ना। आइए सर बताइए सर क्या कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं 44 AD की लिमिट किसके लिए? टीडीएस काटना है। वही बात है ना कि अगर आपका टीडीएस काटना है तो लिमिट क्या ली जाएगी? अगर आप करोड़ के लिए, ये भी एक इश्यू हो सकता है कि उसके लिए उन्होंने कराओ। लेट अस वेट एंड वॉच, ये क्यों किया है, लेट अस वेट एंड वॉच। क्योंकि वहां तो 25 का 50 कर दिया है, वहां 25 का 50 कर दिया है, लेकिन 80JJAA प्रोफेशन के लिए नहीं है। इसलिए शायद कुछ इंटेंशन होगी। लेट अस सी व्हाट इंटेंशन इज देयर टू डू दैट। यस सर बोलिए। 240, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपील करते हैं तो 271 की अपील करते हैं ना पेनल्टी की। गलती से 270A का मेंशन नहीं है वहां पर, हो जाएगा ठीक सर, करा देंगे। मालूम है कि 246 से जहां 271 डाला वो हटाकर 270A भी डालना चाहिए था, साथ में डालना चाहिए था, वो मिसिंग है पॉइंट। यू आर राइट। वैसे तो और भी चेंज है 254 में। आपको पता है कि पहले 4 साल में रेक्टिफिकेशन होती थी, किसकी? ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की। नाउ पीरियड इज रिड्यूस टू 6 months। वो 4 years का रेक्टिफिकेशन जो कहते थे, नाउ इट इज ओनली 6 months। और एक और बात है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का एक लॉ आया था कि आप डीआरपी में जाते हैं और डीआरपी ने टीपीओ की बात नहीं मानी है तो डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है। आप तो कर ही सकते हैं। हम कहते हैं ये क्या बोल रहा, पहला तो आपके 3 कमिश्नर हैं, उन्होंने फेवर में हमारे डिसीजन दिया, फिर डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है। अब अकल आ गई है, वो डिलीट कर दिया गया है। अब डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा, डीआरपी के अगेंस्ट सिर्फ जाएंगे तो हम जाएंगे। वो भी क्लियर कर दिया सर। 254 में वो जो था वो 2 और 3A सेक्शन हटा दिया, सब सेक्शन हटा दिया गया। Last question only please, because we have to start with indirect tax. Yes, यस बिल्कुल ठीक है। आपने किसने कहा? नीचे उसमें डाल रखा है कि अगर आपने फैक्ट्स पूरे दिए हैं और बोनाफाइड दिए हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी। वो हैं सारे सेक्शंस, वो सब हैं। वो नीचे इतना पढ़ता कौन है? इतनी लंबा तो फैक्ट है, तो पढ़ना है प्लीज, इट इज देयर। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलिए क्या लिखा है? सर आप गलत पढ़ रहे हैं। उस पे लिखा है कि 142, 143, 153 है, तो उसका टाइम पीरियड तो 6 ही है। वो कहाँ लिखा है? टाइम पीरियड तो उसका 6 ही है, उसको थोड़ी लॉ को बदल दिया है। यस, मेरे को भी किसी ने, पढ़िए सर, आप पढ़िए, सब सुनिए सर प्लीज, पढ़िए सर आप। ये लिखा कि उस ईयर की इनकम मानी जाएगी, ये तो नहीं लिखा कि ये वो उसका टाइम पीरियड नहीं होगा। और टाइम पीरियड तो 143(2) का है ही है, 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। टाइम पीरियड 142(1) का है, टाइम पीरियड 153 का है, टाइम पीरियड 147 का है। टाइम पीरियड तो 6 साल ही है सर। यही सब किसी ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा इसमें क्या लिखा है कि वो उस साल की मानी जाएगी जिस साल का नोटिस दिया गया, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि वो टाइम पीरियड नहीं है, उस साल की इनकम मानी जाएगी। लेकिन नोटिस क्या आप दे सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स एज पर दो सेक्शंस। कैन दे इशू नोटिस ऑफ 148 फॉर दैट 10 ईयर्स का? एक मिनट सर, फिर अगर आप रिकॉर्ड ही करके तो फिर तो वैसे ही आ गया। आपने रिकॉर्ड नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं दी, वो कह रहा है, फिर रिकॉर्ड कहां है? आपका वो प्रॉपर्टी 8 साल पुरानी पड़ी है, क्या नोटिस दे सकते हैं उसका? नहीं, मेरे को एक चीज बताइए,
ये चीजें मैंने कभी पढ़ी है, मुझे ये बताइए वो उस साल की इनकम मानी जाएगी प्रोवाइडेड वो नोटिस जो पीरियड है उस पीरियड का हो। अब आप नोटिस देने लायक हो, हाँ नोटिस देने लायक हो तो आज की इनकम मान लेंगे। रीजन सर ये है कि 6 साल पुरानी कीमत नहीं मानी जाएगी, आज की कीमत मानी जाएगी, मार्केट वैल्यू आज की। आप उसकी ये आप क्लैरिटी, आप एक चीज को कह रही है कि वो इस साल का नोटिस माना जाएगा, वो डिक्लेरेशन इस साल की माने। मैं ये कह रहा हूं क्या 143(2) कब देते हैं, क्या टाइम पीरियड है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है सर? अगर मैंने पकड़ी गए तो होगा ना, अगर पकड़ी नहीं गई तो क्या मतलब है? क्या मुझे वो 148 6 साल से पुराना दे सकता है? नो कैनॉट गिव, ही कैनॉट। आप उसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाए। मैं खोल के थोड़ी लेगा ये ले मेरे पास है, क्या करना है मेरा। जब भी कभी सर्च होगा 7 साल पुराना होगा, करे कुछ नहीं सकता मेरा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नोटिस देगा 6 साल का, वो 6 साल से पुराना है। तो बात इस बारे में आर्गूमेंट हुआ है, डाउट लोगों के दिमाग में आया, तभी तो मुझे याद है। तो मैं भी ये बता रहा हूं, इस चीज को मैं नहीं मानता। वो कह रहा था जी नहीं जी इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ आप तो कह रहे हैं अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो प्रोविजन द इनकम टैक्स एक्ट कहता है 6 साल। आई एम टेलिंग यू, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। आई सेड वी हैड ए डिस्कशन एंड वी विल बी एग्जामिनिंग। मैंने ये कब कहा है? मैंने कहा मेरा व्यू ये है कि पीरियड है, आपका व्यू है नहीं है इंडेफिनिट है, यही व्यू है ना सर। वी आर गोइंग टू एग्जामिन दिस सर, मैंने तो यही बोला है। अकॉर्डिंग टू माई व्यू नो, अकॉर्डिंग टू योर व्यू यस। तो ये तो भी डिस्प्यूट होगा, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये कर लेंगे ना तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। हाँ ये तो हमेशा ही कहते हैं, ये तो हमेशा ही कहते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप लॉ बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेक्शन का नाम दिया है, फिर सेक्शन देने की क्या जरूरत थी? वो कहेगा वो उस साल की इनकम मान लेंगे। उन्होंने सेक्शन का नाम दिया है, तो अकॉर्डिंग टू मी वो 6 साल वाला, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, क्योंकि ये इशू आपने नहीं रेज किया, ये कई फोरम में रेज हुआ है, हमने डिस्कशन किया। अल्टीमेटली रिजल्ट तो अभी निकलेगा नहीं। वी विल सी टू इट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस। मैंने पढ़ा है, तभी तो मैंने इमीडिएटली सेक्शन बोल दिया आपको। सो डोंट वरी, वी विल लुक इनटू दिस मैटर। दिमाग में डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। इट इज अ गुड थिंग विच यू आर रेज्ड। आई एम ऑल्सो इन अप्राइज्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम। वी विल सी टू इट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।